presentation of the day. As indicated in the timetable or given to you, we are going to talk something on institutional management and academic administration in this session. This will be a theme presentation which will cover the broader aspects of what exactly is institutional management, how it is taken up, why it is needed. These are the issues I will be taking up in this session. Means what, why, and how of institutional management and academic administration. Okay. Let me tell you, this is a very broad session because in the institutional management, you can understand there are a lot many things to be covered. Everything which is part and parcel of any institution is to be covered under institutional management. In this session, I will not be going to the deeper details of anything. Let me tell you, but I will be almost touching all the things what come under any institutional management and how to deal with those minimum things about that. Okay, Baki, step by step we will be building this program, and accordingly you will be given inputs on specific issues during the course of this program. But in this session, this is a broad session in which I will be covering what exactly is institutional management, why it is needed, and how it is conducted. What, why, and how. तीन issues को मैं लेके चलूंगा. Okay, what are the processes involved in institutional management? Okay, to make you aware of what exactly is it is. What are your roles and responsibilities in any institution as an institutional manager? I will be considering you as an institutional manager from a different angle. As a lecturer, you are taking care of the classroom, in addition to some of the duties which are there part and parcel. So you are mainly managing classroom. Mainly managing classroom means in terms of students' performance. And again, management of curriculum is institutional management. Its primary role of institution and management of curriculum. One. So as a teacher, as a lecturer, young lecturers, many of you are joined new, you are taking care of that part of the story, management of curriculum. Am I right? So from that angle, how you have to look into the perspective of management that you are to see. Okay? I will say when you are managing a classroom, it is similar to management of an institution. Classroom में क्या है? Institution में क्या है? Set of people are there. Set of resources are there. Similarly, in a classroom, there are set of people and same set of resources. How optimally you utilize those resources for the fulfillment of the objectives. Objective is to make teaching learning process to take care of that. That is there. But in the institution, the objective is to fulfill the objectives of the institution as a whole. वो क्या है? The institution should run in an efficient manner. Institution should run in an effective manner. The output should be of quality. These are the objectives of any institution. So more or less on the similar grounds you are working into it. Understand? As a lecture you are talking of, then you are given high responsibility, maybe HOD or the principal or the director. His roles and responsibilities are there, different. He is, in addition to taking care of the class, he is also taking care of human resources as colleagues, younger colleagues. As a HOD, you are taking care of younger colleagues. You are also looking into their performance. In the class, you are looking into the performance of the students. As HOD, you are looking into the performance of your department. You are also looking into the requirements of your department. You are also looking into the resources of your department. How efficiently and effectively you are utilizing those resources. Then as a principal, head of institution, is looking into the whole aspect. Classroom, human resources, infrastructure, finance, as all these aspects are to be taken care of as institutional manager. So you all are institutional manager in one way or the other. Level of performance may be varying. But let me tell you, activities through which the performance is done is more or less similar. क्लास में भी जाएंगे, प्लान करके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या 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 रिसोर्सेज चाहिए, LCD चाहिए, बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, those are resources. Okay, then what type of lab you have to conduct? Again, you are planning for it. What type of resources, equipment you require for conducting practical? Again, you are planning. Resource planning means there are some ways in which we are conducting the process. That process is followed at different levels, maybe at classroom level, then HOD level, at the principal level, or director level, highest level. So this way we move in an institution. Is it clear? So consider that you all are institutional managers, one way or the other. Presently, your scope of work may be classroom or department or an institution as a whole. Is it clear?
In this perspective, I am going to talk in this during this session. What will be expectations? Expectation is that you should be able to interpret the planning in institutional management development. What type of planning is needed at what platform? For classroom, different type of planning is needed. For departmental growth, different type of planning is needed. For institution, different type of planning is needed. कहाँ planning चाहिए? किस तरीके की planning चाहिए? Whether you need to think from the policy side, whether you need to think from the implementation side, whether you need to think in terms of resources. Planning has to be taken care of. That you have to identify planning और किस तरह की planning चाहिए. You have to identify from that angle. Expected outcome one. When you have planned, when you know something about the institution, then if you are to grow, you have to think from the future perspective point of view. In this perspective, what we generally say is a strategic plan, or this strategic plan is based on SWOT analysis. SWOT gives you the where you are today, and based on that SWOT, you make some strategies to reach the goals of future. Let's say your IRG. I'm taking one just example. Your IRG today is, let's say, 10 lakhs or maybe zero. You think that during a span of around 1 year or 2 years, you are to bring your IRG to a level of 20 lakhs. 0 to 20 lakhs or 10 to 20 lakhs or 10 to 50 lakhs, whatever targets you can fix up based on your resources, based on your strength. How you are to go there, 10 to 50, 10 to 20, how you are to reach that goal. For that, some strategy has to be adopted. Some strategy has to be adopted. That is called strategic plan. But again, that is based on SWOT. SWOT मैं कल कराऊंगा आपको. SWOT is basically letting you know where you stand today. Where you stand today. जब तक आपको ये नहीं पता कि आज मैं 10 लाख कमा रहा हूँ कि 0 कमा रहा हूँ, तो आप 50 लाख का प्लान राइटली कर ही नहीं सकते. You can't plan of 50 lakhs unless you know where you are today. Similarly, in terms of your performance of students, let's say the result is today 30%, 40%, 50%, whatever the case may be. You want to enhance this result. Performance has to be enhanced from 50% to 80%, let's say. How to do it? Unless you know where you are today, you can't plan for the future rightly. This SWOT helps you in that direction. I will let you know how to do it. SWOT is basically SWOT. This is an acronym. S means strengths, W means weaknesses, O means opportunity, and T means threats or challenges. Sometimes it is called SWOT or sometimes it is called SWOT. Earlier it was used to be called as SWOT. Now sometimes it is also called SWOT. वो जरूरी है. How to conduct SWOT? How to conduct even your as a person. I don't know what strengths I have. मैं अगर आपको कल पूछूंगा ना कि आपकी मेरे को 5 या 4 weaknesses बता दिए, you may not be able to tell me immediately because you have not thought about you. आपकी strengths क्या हैं? ठीक है ना? Many a times you may not be. I will let you know how to conduct a SWOT because that is the starting point of any story for improvement. Based on SWOT, we are able to understand the areas of weakness. And let me tell you, there is scope for improvement in everything. But we cannot start everything simultaneously. उसमें भी देखिए क्या है. There is scope for improvement in everything. कोई दुनिया में कह सकता है मैं सर्वगुण संपन्न हूँ. सर्वगुण संपन्न नहीं है तो there is scope for improvement in everything. When there is scope for improvement in everything, we cannot start everything simultaneously. In that case, you have to prioritize what to start, what not to start immediately. What to start after 6 months, what to start after a year or so. This is called prioritization of your thirst area. This is again based on SWOT. So after going through this, I expect that you should be able to conduct SWOT of yourself as well as the department or the institution in which you are working. This is another expectation from you. This mainly you know. What I'm trying to say in this. This is basically institutional chart or organizational chart. आप में more or less fixed है. Levels are lecturer, senior lecturer, HOD, and a principal. This is more or less level. This is a working relationship in terms of vertical hierarchy.
But there are many things in the institutions, many projects, many programs in which team-based activities are also taken up, which is not reflected in this. वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक आपका फॉर्मल है, उसमें तो इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल, एचओडी, सीनियर लेक्चरर एंड लेक्चर, वो तो एक डिफाइंड प्रोसेस है. But in addition to that, many times you are sitting in groups, you are sitting as a team, you are working as teams. That is again a chart, part of the chart. At what time you need a team to move ahead? What time? Why we make a team? This is first question. Why we make a team? क्यों जरूरत पड़ती है हमें टीम बनाने की? क्या जरूरत है? क्यों बनाते हैं हम टीम्स? आप बच्चों की भी टीम्स बनाते हो ना, प्रोजेक्ट देते हो, क्यों बनाते हो? अकेले अकेले क्यों नहीं करने देते? क्या फायदा होता है दो से काम करने? क्या कह रहे हैं? मैं कह टीम बनाने से फायदा क्या होता है? टीम वर्क वाला कल्चर इनकलकेट. Pardon? Is it only core competency? Team has to fight for a common goal. Common goal is definitely yes, unless there is a common goal shared when there is no team. Group of people sitting is not a team. लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. This is only for load distribution. कोऑर्डिनेट एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर देता है आउटकम को. This is called synergic effect. ठीक है ना? पर क्या है कि सबसे important बात, let me tell you, I always say one thing. We Indians are the best brains in the world. We Indians are the best brains in the world. But as individuals, when we sit in a team, we are a total disaster. This is a very important statement and underline it. This is very important statement. We Indians are the best brains in the world, but as individuals, when we sit in a team, we are a total disaster. And that's the reason importance of team in today's scenario is very, very high in any setup. हम टीम कैसे बनाते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं भूमिका में जा. टीम कैसे बनाते हैं? इंस्टीट्यूशन आपके बनते होंगे ना, प्रोजेक्ट के लिए कोई टीम बना देते हैं. कैसे बनाते हैं? क्या होता है जनरली? एक चिट्ठी आती है प्रिंसिपल से कि ये बंदे काम करेंगे. Am I right? और मोरलेस कैसे होती है? दो तरीके होते हैं बनने के. या तो वो कहते कि यंगेस्ट को लगा दो, जो यार ये काम करते रहेंगे, हम सीनियर कहते हैं. या होता है कि सिनियरिटी के हिसाब से बना देते हैं. और भी मेथड्स होंगे. I don't say always. ज्यादा ये होता है कि जो काम करने वाला है उसकी टीम बनती है, जो नहीं करने वाला. हाँ, वो भी मैं जान के नहीं कहा था ये वर्ड. मैंने तभी ये छोड़ दिया था, आपको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था. This happens. जो काम करने वाले होते हैं तो उनको पकड़ा देते हैं, और जो नहीं करते उनको नहीं करते. ठीक है? But team is never done like it. टीम जो बनती है ना, ऐसे नहीं बनती. There are basically 5 roles in any team. 5 रोल होते हैं जो परफॉर्म होने जरूरी होते हैं. हम तो क्या करते हैं? टीम का लीडर जो होता है, कैसे बनता है वो लीडर? हिरार्ची के हिसाब से ना, सीनियर मोस्ट इज द लीडर ऑफ द टीम. यही होता है ना. कभी और बता दीजिए तरीका हुआ कि जूनियर को टीम का लीडर बनाया हो आपके इंस्टीट्यूशन में? कभी नहीं होता. नहीं होता ना. दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ द सिस्टम. रोल क्या होते हैं? 5. लीडर, ठीक है, टीम लीडर. और क्या होते हैं रोल्स? और पॉसिबली क्या है, आप सोचो क्या रोल होने चाहिए? किस तरह के टीम की डेफिनेशन पता क्या होती है? मैं ये भूमिका ये क्यों बता रहा हूं आपको? इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, और ये गलतियां हम करते हैं आमतौर पे. टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ये कहते हैं हम टीम, है ना? और व्हाट? टू अचीव ए गोल. ठीक है, यही है, बिल्कुल ठीक है. बट इसमें वर्किंग टुगेदर रहता है, तो वो टुगेदर जब आता है ना, तो उसमें क्या है? पुल्स एंड प्रेशर्स आते हैं, खींचातानी भी आती है. होनी चाहिए जो, पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पर होती नेगेटिव है. हर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, हर कोई कहता है मैं ही लीडर हूं. ठीक है, वो प्रॉब्लम आती है. हम कहते हैं कि 3 में 5 रोल्स हो, मैं कह रहा हूँ 5 तरह के रोल्स होते हैं. एक लीडर शुड नॉट बी एज पर हिरार्ची. हिरार्ची पे भी हो सकता है वो बंदा सबके ठीक है, ही कैन कोऑर्डिनेट द थिंग्स. सेकंड रोल होता है टीम प्लेयर का. उसका काम क्या होता है? टीम में कंफ्लिक्ट होना जरूरी है, इट्स ए मस्ट. टीम में क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, इट्स ए मस्ट. विदाउट विच इट्स नॉट ए टीम. इस आदमी का क्या काम है?
ये माहौल को अच्छा रखेगा। अगर कंफ्लिक्ट है, ये ऐसा बंदा है कि जिसकी सबसे ठीक ठाक है, he can negotiate with everybody. This role is called team player who is working on the environment of the team. रोल कह रहा हूं मैं, अब भी बार बार कहूंगा, ये रोल्स हैं, ये इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकता है, मोर देन वन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है अचीवर। अचीवर रोल क्या है? टीम में जब कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, हारमोनी वाला तो बंदा जो टीम प्लेयर है वो तो हारमोनी लाने के लिए लगा हुआ है कि शांति रहे यार, कि ठीक ठाक परफॉर्म करें। और कई बार हारमोनी लाने के चक्कर में टाइम इतना निकल जाता है कि अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट इज अगेन ए मस्ट। टीम बना दी, अचीवमेंट है नहीं, लड़ाइयों कोई देख रहे हैं आप, उसको सॉर्ट आउट टीम प्लेयर ने कर लिया और उसके बाद हैप्पी हो गए, पर टाइम इतना स्पेंड कर दिया, देयर इज नो अचीवमेंट। अचीवर का काम है कि अचीवमेंट को, टारगेट्स जो देखे उसकी तरफ भी ध्यान देना। दैट इज द रोल ऑफ एन अचीवर। और उसके बाद एक रोल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट भी कहते हैं, शैतान का वकील। जिसका रोल क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। वो क्रिटिसाइज किस चीज को कर रहा है? आपकी अजम्पशंस को भी कर रहा है कि तो आप सोच के चलते हैं ये रिसोर्स तो मेरे को मिल जाएगा, ये डेलीगेशन पावर भी मिल जाए, ये मेरे को इक्विपमेंट भी मिला, अजम्पशंस। वो उसको भी चैलेंज करता है। वो कहता है क्यों भाई, जरूरी है मिलेगी? तुमने अज्यूम तो कर लिया कि इसके बेस पे हो जाएगा काम, पर इज इट नेसेसरी दैट यू विल गेट इट? इज चैलेंज योर अजम्पशन। ही इज ऑल्सो चैलेंज योर टारगेट्स। आप काम करते के टारगेट रखते हैं, दिस विल फिनिश इन 10 days, he will challenge. How sure you are it will be finished in 10 days? Why it can't be finished in earlier than 3 weeks or 5 weeks, whatever? He is challenging. This is his role. Most difficult role, most criticized role again. इसको कोई पसंद नहीं करता और इसके बिना गुजारा नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जो बनाया सब कुछ एक्सेप्टेबल है, एंड दैट इज नेवर ए टीम परफॉर्मेंस, क्योंकि दिस पर्सन गिव्स यू द रियलिटीज ऑफ लाइफ। आपने 6 महीने का टारगेट, वो कैसा, दिस कैन बी फिनिश्ड इन 3 months, then you will discuss how it can be discussed and done in 3 months. Or it is then targeted 10 days, how he can say no, it will take more than that, then again there is a discussion to find out the real target time. So this person's role is again very important, ठीक है ना। ये रोल्स लेके हम चलते हैं टीम में। ऐसे क्या टीम कभी बनी है हमारे इंस्टीट्यूशन में? हम तो कई बार टीम ऐसी बना देते हैं जो कई लोगों की आपस सीनियरिटी में हैं, पर आपस में वो इकट्ठे बैठना ही नहीं चाहते, और उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज में मैचिंग नहीं है, सप्लीमेंटिंग नहीं है। सिर्फ टीम बनाने में हिरार्ची मैटर नहीं करती, कोर कॉम्पिटेंसीज में होती है, सप्लीमेंटिंग ईच अदर करता है। सिनर्जिक इफेक्ट तो तभी आएगा जब आप किसी एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। अनलेस यू सप्लीमेंट ईच अदर, सिनर्जिक इफेक्ट कैन नेवर कम। वही क्या होगा, वो 1 और 1 11 की जगह -1 होगा, नहीं तो we say 1 and 1 is 11, but that is true in Japan, not in India. Here many times 1 and 1 is -1. Am I right? So टीम कैसे बनानी है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही, उस एंगल से मैं ये चार्ट की बात कर रहा हूं। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ए टीम। आप लीडर बनेंगे, डिपार्टमेंट में भी बनाएंगे, इवन आप क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए भी टीम बनाएंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर राइट जॉब। इतनी ज्यादा ईगो क्लैशेस, कोई तो बंदा चाहिए जो हु इज एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, हु इज एबल टू कोऑर्डिनेट विद एवरीबॉडी। नहीं तो everybody is going in different direction. What will be your outcome? You have to see the outcome of the team also. From that angle, you need a person. Then you also need a person which I talked, targets को real picture दे, जो हर चीज को real picture दे, that type of person is also needed. So these are some of the things which are needed from that angle. Then, as an institutional manager, sometimes you are communicating with, in the classroom, as a teacher, you are communicating. Sometimes you are communicating with your peer. Sometimes you are communicating with your seniors. Sometimes you are communicating with your subordinates. And then you are also communicating outside world, in the outside world. Maybe with the industry, maybe with the potential employer, maybe with the alumni. How you have to do. That is again your job. How to communicate internally and externally. This is another expectation from this program which you will be able to learn. Okay? Then how to motivate your staff, motivate your students, motivate your peers.
This is again as an institutional manager, listen, and lead the program, lead the activities, maybe in classroom, maybe at departmental level, or maybe at the top level. How to set goals and how to utilize time for achievement of the goals. Again, this is an expectation from this program, which we will be making you understand. गोल कैसे सेट करना है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए हाउ टू यूटिलाइज टाइम. ओके, एंड फाइनली हाउ टू evaluate performance in the class, outside the class, your performance as a teacher, these are to be evaluated and then corrective action need to be taken to improve upon them. मैंने जैसे कहा कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, हर एक में there is a scope for improvement. How to go in for that improvement, for that action plan has to be made, and that part of the story we are expecting you to understand during this process. Is it clear? As a program, what is the expectation? Effectively and efficiently manage the educational institution related activity matching the VN and mission. VN and mission जो कल डिस्कस करेंगे हम क्या और कैसे बनता है, और NEP को स्पेसिफिकली मद्देनजर रखते हुए how we are to make VN and mission of any institution or the department and how to manage that show. This is the expectation of this program. Now I'm coming down to the strictly what we are. In institutional management, there are two words. One is institution, other is management. And combination of two leads to institutional management. Am I right? What one is? Institution क्या होती है? किस चीज को आप institution कहते हैं? What is an institution? आप सारे कहते हैं ना Polytechnic is an institution. What do you mean by an institution? Engineering college is an institution. Later is an institution. What do we really mean by any institution? Institution word क्या चीज है? ये सिर्फ institution word academics के लिए नहीं यूज होता, ये कहीं और भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है. What does this really mean? क्या चीज होती है इंस्टीट्यूट? क्या होता है? किस चीज को हम इंस्टीट्यूट कहते हैं? इसको ना देखिए, आपकी मैं तभी कह रहा हूं परसेप्शन अपनी, आप किस चीज को इंस्टीट्यूट कहते हैं? आपके सामने सारा कुछ आ रहा होगा, बट व्हाट डू वी रियली मीन बाय इंस्टीट्यूट? किस चीज को इंस्टीट्यूट कहते हैं? क्या चीजें होती हैं इंस्टीट्यूट में? एक तो देखो आप डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है, मीन्स कुछ ना कुछ काम के कारण बनी है. जैसे पॉलिटेक्निक का काम क्या बना? टेक्नीशियन बनाना. एम आई राइट? दिस इज द जॉब. डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या हुआ? टू प्रोड्यूस टेक्नीशियंस. इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कॉलेज का डिग्री ग्रेजुएट का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. दिस इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर विच वी हैव. एंड लेट मी टेल यू, इन अंडर दिस देयर आर सम सेट ऑफ गोल्स. कई जगह इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली कुछ कॉज के, कई रूरल में रूरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल मास भी हो जाती है, वहां भी टेक्नीशियन फॉर रूरल मास हो सकता है. कई लोग डेवलप कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन फॉर आर्मी. सो देयर इज सम सेट ऑफ गोल्स, सम स्पेसिफिक टारगेट इज देयर. दैट गोल इज डिस्टिंक्ट. उसके बिना, गोल के बिना नहीं है ये कोई भी इंस्टीट्यूशन. ये जरूरी है. उस गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती हैं. एक तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, एक अदर रिसोर्सेज चाहिए होती है. अदर रिसोर्सेज आ जाते हैं, अदर रिसोर्सेज कई जगह आ जाते हैं, पर ह्यूमन रिसोर्स उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. आपकी पॉलिटेक्निक में ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन योर पॉलिटेक्निक सिस्टम. व्हाट आर दोस? Students and teachers. Only teachers? More than teachers, there are other things also. आपकी कल्पना. हेलो, नमस्कार जी. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ हाँ, अभी मैं कह देता हूँ अपने क्लिक को, वही विल लुक इनटू, आपसे बात करके वो आपको बता देगा. ठीक है, ओके ओके. आप पे ही टेलीफोन कर रहे हैं? ठीक है जी, मैं कह ये ना कल्पना चावला वाले सुबह से मेरे को आ रहा था कि दे वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम. सारी फैकल्टी का पता नहीं सुबह से कर क्या रहे हैं, मेरे को टेलीफोन आ जाते हैं, बट मीडिया वाले बंद. उसी को क्या रहा है, कमल को बुला. कमल एक मिनट आना, वो कल्पना चावला वाला आया था टेलीफोन.
तो आपको उस गोल्स को अचीवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? विद सम अथॉरिटी, विद सम अकाउंटेबिलिटी। मींस अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप इज अ मस्ट, उसके बिना काम नहीं हो सकता। वो कैसे आएगी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप? देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर, जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, प्रिंसिपल, एचओडी, सीनियर लेक्चरर, देन लेक्चरर, and these are again implemented in the classroom. So एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर स्ट्रक्चर ना हो तो nobody knows to whom to report and who what authority you have. उसके बिना defined जब तक नहीं होगा, you will not be able to perform at all. So this is an institution. This way we work in India. मैं बड़ी बेसिक बातें कर रहा हूँ, ये आपको आती हैं। I'm not saying this is not known to you. These all are known to you. ये ले मोबाइल यही करना, यहाँ से कर ले, ये ले कर ले तू जा। So these are the things which are part and parcel of any institution. Now, what is an institutional management? क्या हो गया? What's an institutional management? Or what is an management? What is management? Management. Manage. आप वर्ड को तोड़िए, मैनेज। मैनेज क्या? किस चीज को मैनेज करना होता है? रिसोर्सेज को। Management is the art of getting the things done through the use of resources. This is use means including human resource, through the use of resources and by the human resources. Through and by दोनों चीजें लगेंगी। करना किसने? ह्यूमन नहीं करना है, पर करवाना किससे? ह्यूमन से ही करवाना है। Through and by, these are the two words which are important. Management is the art of getting the things done through and by the people. So अब दोनों को जोड़िए। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन के कामों को मैनेज करने को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। ठीक है? अब मैं आई एम टॉकिंग वेरी इन लेमैन लैंग्वेज। अब काम तो हो ही जाएंगे, वर्क विल बी ऑलवेज मैनेज्ड, बट अल्टीमेट रिक्वायरमेंट इज these should be managed in an efficient and effective manner. What do you mean by efficiency? What do you mean by effectiveness? What do you mean by quality? तीन मैं वर्ड्स हैं आपको, ये आपके पास लिखा हुआ है, समझ भी लीजिए। चलो फिर भी मेरे को बता दीजिए क्या एग्जैक्टली है ये। हाँ, ईटा जिसे आप कहते हैं, इंजीनियरिंग में ईटा कहते हैं ना, आउटपुट बाय इनपुट। कैसे बढ़ा सकते हैं एफिशिएंसी आप? हाउ कैन यू एनहांस द एफिशिएंसी? ये ना, ये इसको आगे खींच लीजिए, थोड़ा सेंटर में रख लीजिए। ये जो ये माइक पर है ना, हाँ हाँ, ये सबको आवाज जाएगा, ऐसे बोलिए, उनको भी सुनेगी जो पार्टिसिपेंट्स है ना। हाँ बोलिए। Sir, by utilizing the resources in the optimum manner. Optimal manner. What do you mean by optimal manner? Sir, optimal manner means whatever the resources we have, there should not be any kind of wastage. Okay, there should not be any wastage. If you are using the resources optimally, then it means what? It means, sir, if we talk about the profit, it should be maximum, and in terms of like loss, it should be minimum. Okay. Anybody else? Technically, it is very clear. Output divided by input. So either you have to increase the output or you have to decrease the input. No? Definitely yes. This is only two ways. Okay. So it means it is means. इसमें means की बात कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहे हैं ना, जिसके थ्रू एफिशिएंसी। It is a means. Means की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे किया, कैसे करने की बात कर रहे हैं हम। रिसोर्सेज तो हैं, उसको यूज कैसे करना है। This is the means we are talking here. And effectiveness. What do you mean by effectiveness? हो गया? What do we really mean by effectiveness? किस चीज को effectiveness कहते हैं? हम सारा दिन वर्ड ये यूज करते हैं। I am very effective. What do you mean by effective? Maximum utilization of resources. Maximum utilization of, एक तरफ कह रहे हैं optimal utilization of resources. This is the maximum utilization of resources is क्या effectiveness आएगी? Optimal तो ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या मतलब उसका? Means time का constant अगर लेके चलें कि जो भी time है we have. नहीं, मैक्सिमम मींस मैक्सिमम टाइम लेंगे। Within given time, maximum resources we have to utilize.
Within given time, Yeah, maximum within resources वो use within करेंगे. constraints, maximum resource we have मैं to समझ रहा हूँ कि आपको समझ आई हुई है, but perhaps you are unable to explain me the real part. I know you are understanding it. रिसोर्स की तो मिनिमम ऑप्टिमली यूज करने को कहेंगे या मैक्सिमम यूज करने को? मैक्सिमम आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, बट स्टिल मेक इट मोर क्लियर. हाँ जी. नो, लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी है. चलो ये आपके लिए रेफरेंस है to make you understand what exactly is effectiveness and what is efficiency. This is a very small story. Once there was a company whose business was to cut trees. Business हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई business रख लीजिए, whatever your business you may name. Its business was to cut trees. Okay? It had employed one person. Let's say कुछ नाम रख लीजिए इस आदमी का. They had one person. Let's say small big company. Start तो एक से ही होगी ना. They had employed one person. Name that person. कुछ भी रख दीजिए, बता दीजिए मेरे को. Ramu. Ramu? Okay, his name was Ramu. He was a very dedicated, sincere, loyal, humble, honest person. Very hardworking person. All the good qualities which are required in any employee, those were there in this employee. Okay? He was contented, as I told you, loyal, everything was there. Every good aspect was there, which is required by any employer. He was working with this company for 5 years. 5 साल काम किया. Okay? During the 6th year, company got more business. Now it cannot work with only one person. They had to employ another person. Let's say another person whose name you nomenclature दे दीजिए और भी कोई. Shamu. Shamu, Ramu, Shamu ही बनते हैं. चलो. His name was Shamu. Okay. Again, all similar qualities which Ramu had. Humble, loyal, hardworking, dedicated, sincere, whatever you mean. All were they contented, satisfied, happy. Now, after the end of the 6th year, company gave increment to Shamu, but not to Ramu. Company gave increment to Shamu, but not to Ramu. What will happen now? What will happen? कुछ होगा? Will get demoralized. Ramu will get demoralized. Okay. ultimately Anybody else? If it will go for demoralized, then ultimately performance will go down. He will get demoralized, his performance will go down. Okay. Anybody else? Ramu will try to do better than Shamu. Ramu will try to do better than Ramu. Let me tell you, who was always trying to do the best what he could do. Both of them. Now what will happen? As you are saying, let me agree with to some demoralization, how it may be. But the person was so sincere. Really, this demoralization affect his performance? Some of you said yes. Yes or no? Will it affect his performance? May or may not. May or may not. May or What is the? Do you say? Somebody from the online mode is saying something. Will it affect the performance? Yes or no? But let me tell you, as I said, every good quality, itni jaldi performance nahi impact karti. He will not allow this his performance. Although he is a little bit demotivated, he is trying that this demotivation should not be reflected in his work. But definitely it is here. उसके दिल में, दिमाग में है. It may be affecting his behavior a little bit. It may lead to a little bit dissatisfaction, discontentment. But in terms of work, his performance was not reduced with such a small note. But as I said, little bit demotivation, little bit discontentment, little bit dissatisfaction. This goes to his place also. घर में भी जाती है. घर में क्या होगा? जो भी होगा. Your better house are very smart. They know each and every part of your behavior. Same happened with this individual. His better was very smart. She was trying to get into what has happened at the workplace. Although he didn't tell immediately, but on persuasion, he told what has happened. Immediate response of the better half was, why don't you go to your boss and ask a question on this? Why don't you go to your boss and ask the reason behind it?
Do you think that he will immediately go to boss? I'm giving you the real situation. Do you think he will immediately go to the boss? No. Will he go to the boss? Yes or no? Yes. कब जाएगा फिर? After? Why it's after some days? What will happen in these days? Introspect. During these days, he will also introspect, and when he will find there is no reason to understand what has happened, then he had no choice but to go to the boss. He has to go to the boss. Jayega. He will go to the boss. Same happened with this Ramu. He went to the knocked at door of the. He went to the office of the boss, knocked the door. Immediately, the boss asked, "Ramu, come in, please." And कैसे आए? जैसे हम पूछते हैं, how are you? And all these formalities were done. And after that, Ramu said, "Sir, I wanted to ask you something." Ramu asked. Boss said, "Most welcome." Ramu asked, "Sir, am I not sincere?" Boss said, "Very sincere." Am I not dedicated? Very dedicated. Am I not hardworking? Very hardworking. After 4 or 5 questions, he will ask, "When then why didn't you give me the increment which you gave to Shamu?" This is the question he asked. Immediately, the boss was smart. I may say, boss was very smart here. The boss said, "Better find the answer of this question for Shamu only." Now, question is, will he go to Shamu? No. Yes or no? No. Not immediately. But does he have any choice to? No. Will he go to Shamu or not? नहीं जाएगा. फिर आंसर कैसे मिलेगा? Then how will he get the answer of it? Introspection कर चुका, situation देख चुका, boss ने कह दिया. Now what is the solution with him? Either he should be remain discredited. यही है ना? He will check the output of the Shama. वो कैसे करेगा? Production made by. आप सीनियर, आपने उसको किसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामू की दी है? उसको तो दी ही नहीं है. How he can check the performance of Shamu? It is not his job. Know what to do. Now again, because he didn't have any choice, he has to go to Shamu, but he will not go straight. Senior है भाई, थोड़ी सी तो ego आएगी. आती है, आनी भी चाहिए. I don't say आनी चाहिए, but है. Now he will go to Shamu someday, but in a different manner. During lunchtime, he goes to Shamu, or Shamu, क्या हाल चाल है? How you are now settled in the institution? How do you are feeling? How you are feeling about the company and all this and all this? After this, the question: how do you work? कैसे काम करते हो, Shamu? Shamu said, "I keep on working throughout the day." Ramu also thought, "I also keep on working throughout the day." After that, Shamu said, "I keep on cutting trees throughout the day." Shamu said, "Also same in my mind." Then Shamu said one thing: after cutting every tree, I take a rest of 10 minutes. Now Ramu is thinking, I even never take a rest at all. ये rest भी करता है, फिर भी increment इसे मिली है. Now lies the underlined statement, which is important to be understood. Shamu said, while I am resting for 10 minutes, I sharpen my X. I sharpen my X. जब आपके पास आपको रेस्ट नहीं करेंगे, लगातार काटते जाएंगे, when will you sharpen your X? और जब शार्पन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट तो होगी, पर जितनी चाहिए उस तरह नहीं होगी. Now let me make you understand efficiency and effectiveness. Effectiveness is basically fulfillment of objectives. Let's say the objective was to cut 2 trees a day or 3 trees a day. Both of them were doing it, but one was doing it with minimum resources sharply, jaldi time, less time spending. Other was may not be able to do the same. And that is the basic difference. In today's scenario, definitely, yes, we need effective people. But in addition to you being effective, we also need efficient people. Effectiveness and efficiency are very important attribute for any teacher or anybody in today's scenario. आपने क्लास में तो गए, क्लास में जाके क्लास भी ले आए, और उसकी आउटपुट क्या निकली, that is equally important. पहले हमारा रोल था क्लास में जाना, nobody is bothered. आप क्लास कैसी लेते हैं, ये भी हमारा रोल है. How efficient, how you are using your resources. Your resource means आपका knowledge भी एक resource है. Resources को आप कैसे use कर रहे हैं, that part is called efficiency. It means, हाँ जी.
you allow, Dr. Sir, Sure. I mean, for everyone, for the benefit of everyone, I'll take 1 minute turn and Most welcome. With another example. Sure, most welcome. The gentleman on my right hand side is Mr. Bhardwaj, and on my left hand side is Mr. Chavla. So suppose you ask both of them, give a assignment that okay, and you give a vehicle to Mr. Bhardwaj, Audi Q7, and to give Mr. Chavla a Luna, right? And now you ask that both of you are supposed to reach to Delhi, right? So we can clearly see that out of the two, who is more efficient? ये resources तो similar होंगे ना. I'm just giving an example to make it more clear. So that for the benefit of everyone, if suppose if we say that Mr. Bhadwaj has Audi Q7, it clearly says that because the speed of the vehicle is more, he'll be reaching definitely better earlier than Mr. Chavla because he is having Luna and he is having Audi Q7. But the point is there that if he starts from Chandigarh rather than going towards Delhi, his steering goes towards Jalandhar. So now who will reach first? Although he's less efficient, but he is more effective because he is very clear that where he is leading to. Absolutely. His intending his objective is very, very clear. Absolutely. So this is the major difference between efficiency and effectiveness when we say that one person could be more efficient because he has more power, more resources, or could be anything other than that also. But he may not be giving the desired output or That's outcome. the point. Yes. Objective को fulfill जब तक नहीं And then करते, we lose the, it is in a different perspective. But what I was trying to say, similar environment, similar resources. In that perspective also, this is a totally different example. When resources are different, एक के पास Q7 Audi है और दूसरे के पास Luna है, तो resources are different. Effectiveness की तो बात की बात है ना यहाँ पे. Resources are different. When resources are different, definitely there can be questions of efficiency and effectiveness, different perspective. We are talking in the similar environment. Here, one teacher is effective and efficient, other is only effective, and one may be only efficient, may not be effective. काम ही नहीं पूरा काम जब करता है बड़ी जल्दी करता है या बड़े अच्छे तरीके से करता है, पर वो काम कभी पूरा ही नहीं करता. ये भी एक सिनेरियो बनेगा. 3 तरह के सिनेरियो हो जाते हैं फिर ये, ठीक है ना. वन इज इफेक्टिव, वो सिर्फ अपने जो करने की जो है क्लास में जाना तो जाना है, जाया है क्लास में बस, ठीक है, इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स. अदर इज क्लास में तो जा रहा हूं, उसके साथ मैं कई तरह के जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी फुलफिल कर रहा हूं और एफिशिएंटली कर रहा हूं, इन्हें सिस्टमेटिक कर रहा हूं, लर्निंग भी देख रहा हूं. दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर. सो द सेम एनवायरनमेंट in which we are talking, it are two different perspectives, in which one in which, as he was saying, the sources are different, other in which I was talking, the sources are similar. Same to kabhi bhi nahi hota, similar. So now let me ask you, do you understand what exactly is efficiency and effectiveness? So fulfillment of objectives or in end goals jo achieve kar lena, that is effectiveness. Ways and means to achieve that, it leads to efficiency. ठीक है. क्या आता है institutional management? What comes under the broad ambit of institutional? Everything, whatever is happening in your institution. Different perspective में बात करूंगा. पहले मैंने कहे थे 4 चीजें. Broader management of curriculum. First, curriculum means teaching learning process in totality. ठीक है? Then I said management of human resources. Then I said management of finances. And finally management of infrastructure. ये 4 चीजें broader perspective में. उन्हें थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट में करेंगे. टीचिंग लर्निंग इज वन, फाइनेंस इज वन, ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज वन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग इन एनी इंस्टीट्यूशन. मींस जो भी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, इट कम्स अंडर द ब्रॉड एम्बिट ऑफ इंस्टीट्यूशन. इनको डील करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है. यू नोट इट. हर इंस्टीट्यूशन में 3 लेवल है मेनली. मैं इसे इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा और इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव. 3 लेवल्स हैं हमारे. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल में. टॉप मैनेजमेंट कौन है आपके इंस्टीट्यूशंस में? प्रिंसिपल. एचओडीज आर आल्सो पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होता. इनका क्या काम है? व्हाट इज देयर रोल? व्हाट इज देयर रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट? इंस्टीट्यूशन में क्या काम है? कोई काम है कि नहीं है? इसको अब मैं जो वर्ड यूज करूंगा ना, जो असल में अब हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ना, दिस इज द मेजर रोल परफॉर्म्ड बाय दिस ग्रुप. एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन.
ब्रॉडर टॉप पर्सपेक्टिव के जो बातें हैं, जिसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या आता है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, ये बनाना इनका काम। ठीक है, हर चीज गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनी होती, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी कई तरह की पॉलिसीज बनती हैं, कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, हर इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से बनाती है, 100% टोटल नहीं होता। These are the people who are doing this job in addition to management of their departments or institution as well. This is their broad role. आप कहता है मिडल मैनेजमेंट, इसको क्या कहोगे आप? सीनियर लेक्चरर को कह लोगे मिडल मैनेजमेंट? If it is in polytechnic system, senior lecturer. If it is in engineering system, we will say associate professor. Okay. Engineering system associate, in the polytechnic system it is senior lecturer. What is their role? What is their role? कोई रोल तो होगा? To implement the policies, To implement? the policies, rules. Okay, जो बनी है, ये इसको कहते हैं हम टेक्टिकल प्लानिंग। टेक्टिकल प्लानिंग फर्क है, एग्जीक्यूशन फर्क है, टेक्निकल प्लानिंग फर्क है। जो पॉलिसी बनाई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, प्लान करने की जरूरत है। पॉलिसी ऐसे नहीं इंप्लीमेंट होती, पॉलिसी तो एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो तरीके चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए। दिस इज अ सेट ऑफ पीपल हु डू इट। ऊपर वाले ने वो बनाई, इन्होंने आगे स्ट्रेटजीज बनाई, एक्टिविटीज बनाई, प्लानिंग किया कि उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दिस इज देयर, एंड एट द लोएस्ट लेवल हु इज देयर? एट द लोएस्ट लेवल वी से लेक्चरर्स और सुपरवाइजर्स और आपके जो स्टाफ वगैरह है उसे लोएस्ट लेवल का है। इनका काम क्या है? इनका प्राइमरी रोल तो सिस्टम में हमारे टीचिंग है, ठीक है, इन एडिशन टू वॉट एवर हैज बीन प्लान्ड एट द इम्प्लीमेंट एट ए डिफरेंट लेवल्स। मे बी क्लासरूम की प्लानिंग है उस क्लासरूम में, डिपार्टमेंट वाली डिपार्टमेंट में, सेक्शंस एंड रोल्स, दीज आर दी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दीज थ्री लेवल। है कि नहीं है? देखो ये छोटी छोटी बातें क्यों बतानी पड़ रही है, जो 20 साल वाले लोग हैं इनको नहीं बताने की मेरे को जरूरत, ये जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे ये। दिस इज नॉट फॉर देम, बट मेनी ऑफ यू आर न्यू टू द सिस्टम। आपका रोल क्या होगा ये डिफाइन कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है? ये मैं बता चुका हूं क्या है इनका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन डायरेक्शन, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, रेगुलेशंस, गाइडलाइन, दिस इज देयर रोल। और दिस इज इन ब्रॉडर सेंस कॉल्ड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो करेंगे उसे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है? एंड थर्ड दिस, आपके भी नीचे वर्कर्स आएंगे, आपके नीचे भी स्टाफ आएगा, उनको सुपरवाइज करना, डेली ऑपरेशंस को देखना एंड प्राइमरी रोल को परफॉर्म करना, ये आपका रोल है एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। इज इट क्लियर? अब ये करते क्या है? सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, मे बी ऑफ क्लासरूम, मे बी ऑफ डिपार्टमेंट, मे बी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, व्हाट वी आर ऑल डूइंग, कर क्या रहे हैं एट डिफरेंट लेवल? वी आर मेकिंग डिसीजन, कुछ ना कुछ डिसीजन तो ले रहे हैं ना सारे दिन, चाहे क्लासरूम में पढ़ाने का ले रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंटल हैंडलिंग का, परचेज का, सम डिसीजंस आर बीइंग टेकन। एम आई राइट? वो डिसीजंस किसके बेस पे हैं? These decisions are based on what? These decisions are based on utilization of resources. Implement करना है तो utilization of resources तो आएंगे ना। And for what we are using the resources? For achievement of objectives. ये काम हम सारे कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं किसी न किसी लेवल पे, जो भी लेवल आपका, वो डिसीजन किसके बेस पे ले रहे हैं? जो रिसोर्सेज आपके पास हैं या आ जाएंगे या होंगे, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारा गोल है। अगर क्लासरूम में है तो हमारी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी टीचिंग हो जाए, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट भी हो सकता है, हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज, हैंडलिंग ऑफ एचआर भी हो सकता है, और प्रिंसिपल है तो उसे इंस्टीट्यूट को रन करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये हमारे ऑब्जेक्टिव। अब ये करते कैसे हैं? अब दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। दिस कम्स अंडर 5 ways, 5 functions. Planning is the first, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and fifth is controlling. ये 5 फंक्शन के अंडर हम मैनेजमेंट सारी करते हैं, चाहे बिजनेस की मैनेजमेंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट हो, चाहे घर की मैनेजमेंट हो। घर में स्टाफिंग नहीं करते, बस इतना फर्क है, बाकी सारे काम करते हैं। स्टाफिंग भी करते हैं, कैसे करते हैं? माइयां दाइयां रखते हैं ना घर में, वो भी तो रख ही रहे हैं,
So these all functions, 5 फंक्शन के अंडर ही हम काम कर रहे हैं. Is it clear? भाई अब और क्या काम करते हैं? ये तो एक चीज होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके अलावा क्या करते हैं? What more we are doing? We are doing designing and development of new programs. हम देखते हैं आपने भी कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स, पॉलिटेक्निक शुरू कर रहे हैं, कोई डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट. You are designing new programs, you are developing new products, you are designing new curriculum, you are designing new subjects. All this work is again done by you people. This is another job which you are performing. कर रहे हैं ना? करिकुलम वर्कशॉप में भी आते हैं, नए सब्जेक्ट्स डिजाइन करते हैं, नए करिकुलम में टॉपिक्स ऐड करते हैं. उनका पर्पस क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज योर स्टूडेंट, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से है. Am I right? This is another job you are doing. ये भी कर रहे हैं, रिसोर्स एक्विजिशन एंड कोऑर्डिनेशन. रिसोर्स एक्विजिशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या मतलब है इसका? एज ए मैनेजर, as a manager, you are doing this job also. क्या है ये रिसोर्स एक्विजिशन एंड कोऑर्डिनेशन? क्या मतलब है? रिसोर्स सारे इकट्ठे करके फिर उनका यूटिलाइजेशन का कोऑर्डिनेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन में यूज करना. अब रिसोर्स क्या है? अर्लियर वी यूज्ड टू बी 3 M's, मैन, मटेरियल, मशीन कहते थे. अब हम 9 M's तक चले गए. 9 M's तक चले गए. मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मूवमेंट, मैनेजमेंट, मेथड, बिल्कुल 9 M's तक चले गए. 9 M's ऑफ रिसोर्सेज. इज इट ओके? तो ये इनको भी हम एक्वायर करना, इनको यूटिलाइज करना इन ए प्रॉपर फैशन. दिस इज अगेन अवर जॉब. क्लासरूम में हम जब जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं पढ़ाने के लिए? आप अगर चार्ट बोर्ड है तो चौक चाहिए, कई बार एलसीडी लेके जा रहे हैं तो फिर आपको पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है ना? पीपीटी बनी होनी चाहिए. कई बार आप चार्ट्स यूज कर रहे हैं, कई बार आप मॉडल्स यूज कर रहे हैं. Unless you acquire these and use them in a proper fashion, you can't give the right output. So this is again your job as a teacher, as an HOD, as a principal. This is again 3 चीजें जो आपकी जॉब हो गई. एक तो डिसीजंस लेना फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अल्टीमेट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव फुलफिल, और उनको अगर करना है तो 5 एक्टिविटीज करनी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नए प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, नए एक्टिविटीज को डिजाइन करना, नए टॉपिक्स को डिजाइन करना, नए रिसोर्सेज को डिजाइन करना, एंड फाइनली रिसोर्स एक्विजिशन एंड कोऑर्डिनेशन. अब मैंने व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ ऑफ, अब मैं हाउ पे आ रहा हूँ. व्हाट एग्जैक्टली इज इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट? प्रोसेस क्या होता है, कैसे चलता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके ऊपर आपका सारा जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट चलता है. इनमें से कुछ चीजें आप कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं. कोई आपके डीटी लेवल पे होती है, कई गवर्नमेंट लेवल पे होती है, पर कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व. All these activities, what these are? What do you mean by planning? इस चीज को प्लानिंग कहते हैं. लेमन लैंग्वेज में बताइए प्लानिंग क्या है? What exactly is planning? 5W 1H. If you are able to question 5 W's and 1H, you are on the path of planning. These 5 W's are what, why, when, where, and how. W, H. ठीक है? ये अगर आप, these are the 5 queries, if we are able to answer, we are on the path of planning. Where planning is choosing a course of action, and deciding in advance what is to be done, when is to be done, where it is to be done, by whom it is to be done, and how it is to be done. ठीक है? ये तो करते हैं ना. क्या करना है पता होना चाहिए, कैसे करना है वो लास्ट को H है, क्यों करना है, कहां करना है, कौन करेगा, कब करना है, एंड लास्ट इज कैसे करना.
अब मैं व्हाट का आपको ये प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग का कोई एग्जांपल दे सकते हैं एज अ टीचर? कैसे आप यूज करते हैं ये मैंने जो कहा 5W1H को कैसे यूज करते हैं? कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं? एनीबॉडी हु कैन गिव मी द एग्जांपल ऑफ प्लानिंग, कैसे करते हैं एज अ टीचर, एज ए HOD और ए प्रिंसिपल? हाउ डू यू यूज इट? ये आप रोज कर रहे हैं? Most common you can using it. हाँ, कोई भी एग्जांपल आज टीचर दीजिए। लेक्चर लेना है, बिल्कुल। व्हाट मींस आपको लेक्चर लेना या आपका टॉपिक पता है? हाँ, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए ले रहे हैं? नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये आप देखिए फर्क पड़ जाएगा दोनों में। सिर्फ पढ़ाने के लिए है तो दैट इज डिफरेंट, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तब भी डिफरेंट है। हाँ, Lecture hall where ओके, then who is the lecturer, who is the lecturer, and then how what is the style of teaching and all. ओके। हूम में और भी आ सकता है। which method भी आता है, कौन सी method है? होम में आपको स्पोर्टिव स्टाफ भी हो सकता है। आपको दिखा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उसमें आपका स्पोर्टिंग स्टाफ भी आपके साथ कोई मॉडल को डिस्प्ले कर रहा है, कोई चार्ट को दिखा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यू इज वन, ठीक है ना? इसी तरह HOD बैठा भी आपके लिए प्लान डिपार्टमेंट लेवल पे, व्हाट विल बी डन, हु विल डू इट, whom is anybody from the sporting staff and from the staff, why it should be done, where it should be done, when it should be done, when is the time, and finally how it is to be done. It is done at every level. ठीक है, ये तो आप कर रहे हैं। कहते हैं जो प्लान नहीं करता वो फेल होने की तैयारी कर रहा है। दिस इज जनरली सेड इन ए लेमैन्स लैंग्वेज, वी से द पर्सन हु डजंट प्लान इज प्लानिंग टू फेल। क्लास बिना प्लानिंग के तो नहीं ना जा रहे, क्या पढ़ाना हमें पता ही नहीं तो फिर क्या पढ़ाएंगे? ये वहां क्लास में जाकर थोड़ी सोचेंगे क्या पढ़ाना है। अगर HOD अपने डिपार्टमेंट का ये नहीं सोच सकता कौन क्या काम करेगा, देन ही इज गोइंग टू बी अ फेलियर। कब करना है ये नहीं डिसाइड हुआ, वही फेलियर होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी प्रोसेस, एनीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, विदाउट दिस यू कांट सर्वाइव। और क्वेश्चन ये है, इज इट ओवर वंस इट इज डन? इज इट ओवर वंस इट इज डन? एक बार कर ली उसके बाद जरूरत है दोबारा करने की कि नहीं? अगर हमने व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर कर लिया, उसके बाद दोबारा इसे करने की जरूरत है कि नहीं? एक ही बार कर ली, खत्म। यस और नो? Sir, it's a continuous process. It is a continuous process. Okay. It again comes at every level. Whatever we are doing it simultaneously, either simultaneously or at the end, we are monitoring also whether what we have planned is going rightly or not wrong, in the right perspective or wrong. Accordingly, we are again replanning. कुछ गलत हो रहा है तो उसे रीप्लान भी तो कर रहे हैं, उसे रीपाथ भी तो ले रहे हैं, नया एक्शन भी तो ले रहे हैं, नई एक्टिविटी तो भी कर रहे हैं। अगेन दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस स्टार्ट्स एट A point and goes till Z point. सारा दिन ये चलता है, एट एवरी लेवल इट इज गोइंग। किसी की हम रीप्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी को नए को प्लान कर रहे होते हैं। तो दिस इज ए प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे 24/7। आप कर रहे हैं, करते हैं ना ये? मैं वही बातें बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, करते कैसे। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? अब प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जनरल बात कर ली मैंने। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है? अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन का गोल को फुलफिल करने के लिए whatever it needs to be planned is called institutional planning. वो किसके बेस पे करेंगे? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे जब हम, किसके बेस पे करेंगे? अवेलेबल रिसोर्स। बस कुछ रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल नहीं होते, एक्सपेक्टेड भी तो होते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो आपको आपके भाई बंधु के पास भी हैं, ठीक है ना, वो आपको मिल सकते हैं। रिसोर्सेज हमेशा आप कहते हैं रिसोर्सेज सिर्फ मेरे रिसोर्सेज नहीं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में फर्क क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर रिसोर्सेज ओनली, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज। आप मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात ही कर लेता हूं। एक आपका इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा है, लेट्स से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्या एक आदमी, कोई एक फैकल्टी मेंबर सारी इंजीनियरिंग डिप्लोमा को पढ़ा सकता है, सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है? Knowledge is a resource. One may have X knowledge, other may have Y knowledge, third may have Z knowledge, and this cumulative resource leads to the diploma.
That's the reason I said it's not your resources only. It's a resources, collaborative resources. These resources may be in the form of your colleagues. These resources may be in the form of the people with whom you have networked. Making of timetable. For the timetable is होते हैं hours maintained, weekly maintained. ये सारे constraints होते हैं. That's the point I am trying to say. आप प्लानिंग में भी जब कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग में भी इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव राइट मैन फॉर द राइट जॉब. आपकी नॉलेज है, इनको एक्स है, उनको वाई है, उनको जेड है. अगर आप प्लानिंग राइटली एचओडी बना रहा है, किसी के टाइम टेबल भी बना रहा है, लेट्स से ही इज प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल फॉर ए क्लास, does he need to know the expertise of each individuals who are available in the department or not? या किसी को भी उठा के को मर्जी दे दो. What this is again, this is again planning, and for that planning you need to know what are my resources as an HOD. Resources तो यही है ना, ये सारे resources है ना मेरे. This is a set of people which are available with me in the department, and one is having X knowledge, other is having Y knowledge, third is having Z knowledge, or A, B, C, whatever you say. I am to use them in such a fashion that the output is the best as per the objectives of the institution. यही है ना मेरा गोल. ये प्लानिंग करूंगा तभी बात बनेगी ना, नहीं तो क्या होगा? If I am not using the right resource, एक तो optimal output नहीं आएगी. दूसरा क्या होगा? Demotivation amongst individuals. इनका एक्स का नॉलेज था, इनको मैंने वाई दे दिया, उनका जेड का नॉलेज था, उसे ये दे दिया, उसका ये होता है बहुत बार आपके इंस्टीट्यूशन में, होता है ना. इतेशी बड़े कॉमनली होता है ना, जो सब्जेक्ट आपके एक्सपर्टाइज भी नहीं होती दूसरे को देते हैं, जो आपके एक्सपर्टाइज होते हैं दूसरे को देते हैं, जो आपके नहीं है उसको दे देते हैं, एंड यू आर ऑलवेज इन ए ट्रबल. उसमें क्या रहता है कि जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म एंड देन शॉर्ट टर्म, डेफिनेटली हम लोग भूल जाते हैं ना व्हाई वी आर डूइंग दिस. डेफिनेटली प्लानिंग में ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव को तो मद्देनजर रखना ही है, उसके बिना नहीं चल सकती. So institutional planning is based on your felt needs. क्या करना है means objective. And उस objective को fulfill करने के लिए what are the resources with you presently, or what are the resources which you can get after networking with something, some people, or some institution, or something like that. Based on that, we design the program or the plan, the institution activities, and get out. Ultimate aim is optimal utilization of resources here. जैसे भी बेस्ट यूज कर सकते. स्कोप इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में कहाँ है? इम्प्रूवमेंटिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलर, नॉन करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, अदर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, ये सारा स्कोप जो भी हम कर रहे हैं सारा कुछ उसके अंदर आता है. अब प्लानिंग के फेजेस क्या होते हैं? प्लानिंग कम्स अंडर 5 फेजेस. ऐसे नहीं है, प्लानिंग भी अगर कर रहे हो तो प्लानिंग सीधी नहीं होती. इट इज बेस्ड ऑन समथिंग. कैसे करते हैं प्लान? Here we are presently. What we need to do in future. Second. Third. अब जो gap है, where we are and what we need to do. इस gap को भरना कैसे है? That is called third phase, strategic plan or strategy. ठीक है? अब क्या करेंगे? बना तो लिया, प्लान भी बना लिया, स्ट्रेटजी भी बना ली, उसे इंप्लीमेंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड फोर्थ फेज. अब इंप्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? whether we are right or wrong, whether we are on the right track, whether we have failed, whether we have achieved our goals to some extent or not, this is called evaluation. Fifth phase. इसके बिना भी गुजारा नहीं. That is called evaluation. इसके बेस पे हम corrective action, वही रीप्लानिंग, redesign of activities. This is the total 5 phase activity. मैं इसको टच नहीं कर रहा बहुत अब. Second phase, organizing. Organizing क्या है? What do we really mean by organizing? क्या है organizing? किस चीज के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप? What we are organizing? What we are organizing? किस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप? ये फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का. किस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मेरी बात समझ नहीं आई क्या? किस चीज को? प्लान तो कर लिया,
रिसोर्सेज पे प्लेस पे प्लान कर लिया। ऑर्गेनाइज किस चीज को कर रहे हैं? Available resources. अवेलेबल रिसोर्सेज और एंटिसिपेटेड रिसोर्स, ठीक है ना? ऑर्गेनाइज करना है तो ये किस तरह के रिसोर्सेज होंगे आपके? किस तरह के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं? ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की इमोशंस नहीं होती, पर ह्यूमन रिसोर्स को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल पार्ट को भी देखना पड़ता है। That has to be looked into. Doctor, there's another school of thought when we called about human as resources. तो यहाँ पे different school of thought है कि anything other than out of those 9 resources, suppose M की बात करें, other than the human, everything is a resource, but human are not the resources, they are the sources. Because human they are the sources, they are not the resources. Why? Because they can, with the namesake we can say that the resources, but human are the different from others because they can produce the resources. That is okay. Suppose, That is okay. That is okay. आप जिसको जो मर्जी डिफाइन कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा? ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अब तो हम अवेलेबल रिसोर्सेज कह रहे हैं, बट ह्यूमन आर हैव द पोटेंशियल कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं भी, तब भी हम रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर लेंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे, चाहे वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ ह्यूमन में ये की पोटेंशियल है। मैं तो कहीं का उसके मैंने क्या क्या ह्यूमन के साथ दो ह्यूमन के साथ के वो पार्ट्स कहे नहीं है, साथ में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, उसकी अपनी कई तरह के एस्पेक्ट्स हैं जिसको बाकी के लिए नहीं चाहिए, वो हमें उस एंगल को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल, डेफिनेटली एज ही इज सेइंग इज राइट। यू मे कॉल इट अगेन, यू मे कॉल इट सोर्स और रिसोर्स, डजंट मैटर। रिसोर्स क्या चीज है? मैं रिसोर्स को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लेके जाता हूँ। Resource is a thing on which you can bank upon at the time of need. That is a resource. You can bank upon at the time of need. आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है. If you are not utilizing it, if it is not usable due to some reason, it is not a resource. आपका एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड उस इंस्टीट्यूशन में कहीं पे कोई काम था आपको, ऐसे कहीं भी एक आदमी था आपका पीएन था, दूसरा एक आदमी था डायरेक्टर था, 2 दोस्त थे आपके। अगर डायरेक्टर जो था आपके मौके पे हेल्प नहीं कर पाता, इज नॉट ए रिसोर्स। अगर वो पीएम कर पाता तो इज द रिसोर्स। रिसोर्स आई यूज फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे है ना स्कूल ऑफ थॉट, रिसोर्स इज अ थिंग ऑन विच यू कैन बैंक अपॉन एट द टाइम ऑफ नीड। आप कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेज भी, जैसे इक्विपमेंट आपके पास बहुत अच्छी मशीनें पड़ी हैं, इट्स अ रिसोर्स फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। बट इफ इट इज नॉट वर्केबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिकल बड़ी जगह होता है कि ड्यू टू सम मेंटेनेंस, ड्यू टू एनी रीजन, if it is not workable, it is not a resource. Or the other way around, when we say the resource of water is a lake is a resource of water, but rain is a source of water. This is the difference between the two. Rain is a source of water, but lake is a resource of water. A pond is a resource of water. वो आप सोर्स और को रिसोर्स हुआ ना, सोर्स से ही आएगा री, तो आफ्टर ऑल सोर्स से ही री बनेगा। रिसोर्स तो सोर्स के बाद जो बार बार यूज हुआ, रिसोर्स तो वही है ना। री मीन्स व्हाट, अगेन रिपीटिंग इट। सोर्स कोई रिसोर्स होता है ना, अदरवाइज तो है ही नहीं। जो सोर्स है वही रिसोर्स बनेगा, जो सोर्स ही नहीं है वो रिसोर्स कैसे बनेगा? इनकी डेफिनेशन को ही लेके चलो। री मीन्स आफ्टर अगेन रिपीटिंग। री वो तभी बनेगा जब सोर्स है, जब सोर्स ही नहीं है तो रिसोर्स कैसे बनेगा? है regenerated source. हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, जो सोर्स ही नहीं है वो रिसोर्स कहाँ से होगा? ठीक है। हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? To avoid duplicacy of efforts, to optimally utilize the resources, maximum utilization, optimally utilize the resources. ये बेसिक कारण होता है हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी प्लानिंग जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, but unless you are able to organize your resources may be available with you. Resources may be available with you. Unless you are able to organize them at the right moment, you can't get the output. जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Unless you are able to organize them, you cannot utilize them. प्लानिंग में आप अज्यूम करते हैं मेरे को ये रिसोर्स चाहिए। प्लानिंग एट द लेवल ऑफ प्लानिंग, यू आर सेइंग
लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स, मेरे को इस तरह के नॉलेज का आदमी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड एट द प्लानिंग लेवल. बट वो अचीवमेंट तब होगी इफ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज इट. If you're unable to organize it, no plan can be successful. As an institutional manager, your role to organize the resources is very important. अब आपने क्लास में जाना है, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ. क्लास में जाना है, आपने एक पेन ड्राइव बना ली, अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन बना ली, assuming that you will get LCD projector to go to the class. ठीक है. अब क्यों प्लानिंग लेवल पे अज्यूम किया था कि मेरे को एलसीडी प्रोजेक्टर मिलेगा, तभी मैं सक्सेसफुल हूँ. एलसीडी प्रोजेक्टर होगा, पीपीटी होगी, अगर पेन ड्राइव नहीं है तो मेरे को वहां पे इंटरनेट चाहिए जिसके थ्रू अपना मैं कर सकूं. बाई चांस यू आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज एनी ऑफ देम, योर प्लानिंग इज अ फेलियर. एक भी चीज इनमें से नहीं होती तो यू आर ए फेलियर. सो प्लानिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स. दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, without which you can't survive. Is it clear? And ऑर्गेनाइजिंग में और एक चीज होती है, ऑर्गेनाइजिंग में एक और चीज होती है. When I'm talking of organization, I'm also talking of human and non-human resources. ठीक है. When I'm talking of organization of human resources, organization of human resources means what? सिर्फ इकट्ठे करना तो नहीं है ना काम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब. What do I really mean by organization of human resources? I have to give them some authority, some powers, some delegation, and based on that delegation of power, they will be accountable to somebody. Unless I make a chain of this, I cannot get the right output. अगर आपको इंस्टीट्यूशन में यही नहीं पता कि किसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, क्लास में रिपोर्ट करना है, एचओडी को रिपोर्ट करना है, किसको क्या करना है, to whom I am responsible, what type of power I have, I cannot perform. Unless I have both the things, accountability and power relationship, I cannot again survive. This is again part of organization. जो organizational chart कहते हैं ना, जो hierarchy आपकी बनी है, principal, HOD, senior lecturer, this is again accountability and power relationship, authority relationship. ये अगर नहीं होगा, this is again part of organization, organizing activity. आप लेक्चर हो सकते हैं पर आपका एचओडी आपको उस तरह की पावर ही नहीं देता, आपको इग्नोर करता है. ये भी तो होता है. डेलीगेट ही नहीं करता अपनी पावर, सारी सेंट्रलाइज, हर चीज की पावर प्रिंसिपल अपने पास रखता है, एचओडी अपने पास. ही डजंट डेलीगेट यू एनीथिंग. इफ ही डजंट डेलीगेट यू एनीथिंग, then you are also not accountable to him, because you cannot perform unless you have the power to do, authority to do something. This again comes part of the organization, organizing me. ये मैं बड़ी छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ. I know these are some of many of the most of the things are known to you, but इसके बिना गुजारा नहीं है. This relationship is known to you कि अगर मेरी को अथॉरिटी नहीं है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. Authority and accountability go together. Failure कहाँ होती है? At many of the places, at many of the institutions, what happens? मैनेजर आपकी अकाउंटेबिलिटी तो एक्सपेक्ट करता है पर आपको अथॉरिटी को ही नहीं देता. अथॉरिटी को ही नहीं देता. Then there is a failure, and this happens at many places. अकाउंटेबिलिटी तो आपसे सारी एक्सपेक्टेड है, एचओडी भी लेक्चर वो ये काम करेगा, वो मेरे को रिपोर्ट ऐसे करेगा, पर आपने उसे डेली पावर कोई दी नहीं, अथॉरिटी कोई दी नहीं. अथॉरिटी मीन्स व्हाट? अब अथॉरिटी क्या चीज है? अथॉरिटी मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर टू यूज द रिसोर्सेज. अथॉरिटी मीन्स पावर टू यूज द रिसोर्सेज. अगर आपके पास पावर टू यूज द रिसोर्सेज नहीं है तो हाउ विल यू यूज द रिसोर्सेज, एंड व्हेन हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज? When you cannot use the resources, you cannot perform. Simple fund. If you have no resources, if you have no power, it means you are not accountable to anybody. फिर आपको क्वेश्चनिंग अकाउंटेबिलिटी की नहीं हो सकती, पर ये होता है. अकाउंटेबिलिटी 100%, पावर नो, 0. दिस ऑल्सो.
ये कैसे किया जाता है? आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें आपको जो हम एक इंस्टीट्यूशन को मैं लेके चल रहा हूं। इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। ये कैसे किया जाता है? डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, किसको क्या काम देना, किसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, ये किस बेस पे डिसाइड होता है? ऑन व्हाट बेसिस दिस इज डिसाइडेड? कौन क्या एक्टिविटी करेगा, कौन क्या काम करेगा, हाउ दिस इज डिसाइडेड? प्रीवियस परफॉर्मेंस इंडिविजुअल, कोई नया ज्वाइन किया, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या होगी? क्वालिफिकेशन। लेट्स से आपकी क्वालिफिकेशन एमटेक है, डज दैट मीन यू कैन परफॉर्म एवरीथिंग? वो कैसे होगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आपको मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम जनरली ये वर्ड यूज नहीं कर रहे, पर हो रही है ये हो रही है, इसके बिना गुजारा नहीं है। किसको क्या काम देना, कैसे देना, कौन सी एक्टिविटी, कौन क्या परफॉर्म करेगा, कैसे डिसाइड होता है? एबिलिटी तब देखी जाएगी जब आपको काम दिया जाएगा। जैसे हमारा अकाउंट्स का कोई एम्प्लॉइज है, वो उसको अकाउंट्स छुट्टी देंगे, कोई इंजीनियर का उसको इंजीनियर की छुट्टी देंगे, जो मैनेजिंग। सो द बेसिस इज फिक्स्ड, उसकी स्पेशलाइजेशन। एम आई राइट? एम आई राइट? यही है ना? जैसे हम मैनेजिंग करते हैं, हम कोई बजट बनाते हैं, द फोरकास्ट प्लानिंग ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द ईयर। एब्सोल्युटली, उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको वर्क। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अदरवाइज हम सब प्लान नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एक अकाउंट्स ले लीजिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लिया, डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट है ना? अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन क्या परफॉर्म करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे, या और भी कुछ होगा? इंटरेस्ट पे भी डिपेंड कर सकते हैं? हैं। किसी का पर्सन, कोई पर्सन का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है, so we can ask, मतलब कम्युनिकेट करके कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। Okay, this can be one of the ways. और क्या तरीका होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। कैसे? आप एचओडी हैं या आप क्लास में ही हैं, एक जाते हैं, 60 बच्चे बैठे हैं, आपको ये पता है कि सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, पर किसको किस काम के लिए लगाना, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? दिस इज द जॉब हियर व्हिच इज इंपॉर्टेंट। 60 में से बेस्ट पॉसिबल हर चीज के लिए ढूंढ लेना, दिस इज द जॉब ऑफ ए मैनेजर, एंड सिमिलरली इज टू वर्क एट दैट लेवल। मैनेजर मींस टॉप लेवल, जो मस्ट लेवल, एनी लेवल आई एम टॉकिंग। ये जॉब है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजिंग जिसे मैं कह रहा हूँ। इसको थोड़ा और शब्दों में बोलेंगे, पहले एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करके हाँ, उसको रोल्स डिसाइड कर लेते हैं। अब उस रोल्स में कौन फिट हो रहा है, देन वी गेट। हाँ, तो इंटरेस्ट वाली बात की बात, उस रोल में कौन फिट हो रहा है वो हमें देखना। ये आप अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ फेलियर होती है। If you are not able to select the right man for the right job, as per his competency, as per his interest, then you will not get the right performance. यहाँ पे फेलियर होती है। हम आपका एज ए मैनेजर, आपका रोल ही यही है, टू आइडेंटिफाई द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यही तो ऑर्गेनाइज करना है आपने। यही फेलियर होती है, यही कहते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन यही तो है। किसको कैसे ढूंढना, हीरा ढूंढना है ना। That hero may be the lowest one level person or maybe the top level person, depends कैसे ढूंढना है। हर बंदा हर के लिए नहीं बेस्ट हो सकता, हर आदमी हर चीज के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। So there are some good points in everybody, but there are also bad points in everybody. And a manager is the best manager, or a good administrator is the one who is able to use your best part, not the worst part. ऐसी एक टीम सिस्टम, टीम मींस डिपार्टमेंट इज अ टीम अगेन, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम हर एक का बेस्ट ले रहे हैं, हर एक का बेस्ट ले रहे हैं, हर एक का बेस्ट यूज कर रहे हैं। दिस इज एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। यही तो मैं चाह रहा हूं, यही तो चाहिए। उसमें इंटरेस्ट भी आएंगे आपके परफॉर्मेंस में। सिर्फ कॉम्पिटेंसी में सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं आती। कई लोगों को नॉलेज यहाँ पे बहुत है। अब देखिए, अब और मैं ले लेता हूँ, क्वालिफिकेशन में भी PhD, मे बी MTech, इज लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, पर उसमें दूसरी स्किल नहीं है।
वो क्लास में जाकर डिलीवर नहीं कर सकता। मे बी हिज कम्युनिकेशन इज वीक, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ, डिफरेंट एंगल। हिज कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, होता है ना ये। कई बार क्या होता है, क्वालिफिकेशन कम हो सकती है बट हिज डिलीवरी इज एक्सीलेंट। कहाँ पे किसको यूज करना है, दैट इज द जॉब ऑफ द मैनेजर। यही तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजर का जॉब है, आइडेंटिफाई राइट मैन राइट फॉर द राइट जॉब। दिस इज रियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे डिफिकल्ट काम है। जब आपने ये मैं जब से बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब से बोल रहा हूँ ना, आपका इंटरेस्ट में शक्लों से देख रहा हूँ नहीं है, बट लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। यही नहीं होती, यही नहीं होती। हम सोचते हैं जो सीनियर मोस्ट नोज एवरीथिंग, दैट इज नॉट द कॉज, दैट इज नॉट द रियल reason behind selecting a person. If a manager, maybe classroom manager, maybe a departmental manager, maybe institutional manager, is able to identify right resources, organize right resources, utilize the right resources, he is a real manager. इन्होंने जैसे कहा, हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को छोटा छोटा, हम इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, हम एक होल नहीं देते कभी भी किसी को। ये एक चांस लेने वाली बात, आइडेंटिफिकेशन। अब पहले दिन आए आप सारे मेरे पास नए, पहली बार इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, हाउ डू आई नो हु इज द बेस्ट वन? आई डोंट नो। फिर क्या करूंगा मैं? छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हो सकती हैं पॉसिबली, विच आई नो एवरीबॉडी कैन डू इट, आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पीपल। उसे कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। पूरे काम को मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांट दूंगा, सबको छोटी छोटी एक्टिविटीज दूंगा। उससे मेरे को पता लगना शुरू हो जाएगा कौन क्या करने लायक है, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। और बेस्ड ऑन दैट आई कैन आइडेंटिफाई द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अल्टीमेट एम तो टोटल इंस्टीट्यूट ही है ना, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं एक को, जैसे आप कहा कि जो काम करता है उसको सारा काम दे दो, ये भी नहीं है। इट मीन्स आवर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट राइट इफ आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क। हर आदमी से मेरे को काम लेना है, वो उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं ले पाता हूँ, आई एम ए वेरी गुड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर। अगर नहीं तो आई एम ए फेलियर। और वो एकदम नहीं होगा, इसलिए आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके। कई बार आपको उन्हें बिल्ड भी करना पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी। पर्सन देखो, हर तरह का, आज मैं पढ़ाता हूँ क्लास में 4 तरह के बच्चे आते हैं, हर क्लास में, हर क्लास में 4 तरह के बच्चे होंगे। वो क्या होंगे? एबल एंड विलिंग। एबल भी है, कॉम्पिटेंसी भी है उनमें, विलिंगनेस भी है। ये बच्चे भी आते हैं, आएंगे, हर क्लास में होते हैं 10-15%। एबल बट अनविलिंग, ये आपके साथ भी होंगे। एबल बट अनविलिंग, कॉम्पिटेंसी है तो दिल नहीं करता, काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तीसरे क्या होंगे? अनेबल बट विलिंग, अनेबल बट विलिंग, इनको भी आप सांचे में डाल सकते हैं, विलिंगनेस तो है। एंड फोर्थ कौन सा सेट तो क्या होगा? अनेबल बट एंड अनविलिंग। ना तो कॉम्पिटेंसी भगवान ने दी, ना उनमें विलिंगनेस दी, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये हर इंस्टीट्यूशन में आपके मिलेंगे, चाहे क्लास हो चाहे टीचिंग क्वालिटी हो, सब में मिलेंगे। अनेबल अनविलिंग भी मिलेंगे, एबल बट अनविलिंग भी मिलेंगे, एबल एंड विलिंग भी मिलेंगे, एंड चौथी कैटेगरी जो बची है वो भी मिलेंगे। अब क्या मैनेजर का क्या रोल है? अब देखिए, मैं वही आपको बार बार, ऑर्गेनाइजेशन ही है ये। मैनेजर किसको कैसे ढूंढेगा और कैसे काम करवाएगा? हर एक के ऊपर एक स्ट्रेटेजी आप मोटिवेशन की नहीं लग सकती, ठीक है। अनेबल बट विलिंग के ऊपर एक स्ट्रेटेजी जो लगेगी, अनेबल बट एट विलिंग, एबल बट अनविलिंग, दोनों में स्ट्रेटेजी फर्क होगी, एक स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी। उस तरह एबल एंड विलिंग के ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी लगेगी जो अनेबल एंड अनविलिंग के ऊपर नहीं लगेगी। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यही तो मैनेजमेंट है, यही ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो बात की थी ना, 2 चीजें, इन्होंने इंटरेस्ट कहा था, आपने कॉम्पिटेंसी कहा था। कॉम्पिटेंसी कहां से जज करूंगा? क्वालिफिकेशन से शुरुआत करूंगा। कॉम्पिटेंसी क्वालिफिकेशन से सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में सारे जो आए, बीटेक आए या एमटेक आए, हर डिपार्टमेंट में है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट दिस इज नॉट द एंड पॉइंट। सारे के सारे एमटेक है तो मैं किसको लूंगा ये कॉम्पिटेंट है ये नहीं है?
How will I judge it? How will I know who is willing, who is not unwilling? How will I know who is unwilling and who is also incompetent or less competent? These are the things I am to you as a manager. This is organization. Clear? इसके लिए वो मैंने जान के जितना लंबा, ये सबसे छोटा था मेरा टॉपिक, पर इसके सबसे ज्यादा टाइम लगाना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शक्लों पे ये लग रहा है ये क्या है, कुछ नहीं है, ये है नहीं, ये सबसे डिफिकल्ट काम है. How the way you are doing it? This is based on four things. Identification of activity. ठीक है? I'm moving ahead. I'm not going to touch these. I've explained. Third part. Third rule as a manager. Staffing. Right man for the right job. ये आप करेंगे नहीं, करते नहीं है. आपके डीटी लेवल से आते हैं, पब्लिक सर्विस में जाएंगे, और स्टिल आप करते हैं ये, फिर भी करते हैं ये, थोड़ा सा ही करते हैं जी. कैसे करते हैं? चलो, कई बार एज एचओडी आप आउटसोर्स से लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, स्टाफ रखते हैं, लेते हैं ना, वो भी तो रिक्रूटमेंट है ना. हर लेवल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्वीपर ही रख रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन के लिए. स्वीपर अपना काम ना करे, वो भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती. जिस तरह प्रिंसिपल काम ना करे, इंस्टीट्यूशन नहीं चलते, उस तरह स्वीपर भी ना काम करे, इंस्टीट्यूशन. एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट इन द टोटल हियरार्चिकल सिस्टम, इन द सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गन. स्टाफिंग उस लेवल पे तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना. कई बार आप इंटरव्यूज में, सिलेक्शन कमेटीज में जाते हैं, मेनी ऑफ यू मे बी गोइंग इट. उस टाइम आपको क्या चीजें कैसे ढूंढनी है वो भी तो पता होना चाहिए. दैट ऑल कम्स अंडर पार्ट ऑफ स्टाफिंग. इज इट क्लियर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट मैन फॉर द राइट जॉब. मैं इसके ऊपर ये स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग के. मैन पावर प्लानिंग, कौन सा आदमी चाहिए, किस जॉब के लिए चाहिए, कितने चाहिए, ये तो आप करते हैं ना. स्टाफ ही चाहिए, लैब में कितने लोग चाहिए, प्लानिंग तो करते हैं ना एज एचओडी. चाहे मिले ना मिले, चाहे डीटी को लिख दें कि मेरे को 3 लैब अटेंडेंट चाहिए, या मेरे को इस तरह की फैकल्टी चाहिए डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में मेरे पास 2 फैकल्टी है, मेरे को 5 चाहिए, बेस्ड ऑन द लोड, मे बी योर करिकुलम लोड और मे बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. दिस इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग. और उसी तरह आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल में ही आप सोचते हैं एक डिप्लोमा में चला रहा हूँ ऑटोमेशन का, या किसी का एक और कोई डिप्लोमा चलाना चाहता हूँ, मैकेनिकल में ही शुरू करना चाहता हूँ फ्यूचर में साल बाद, तो उसमें किस तरह के लोग चाहिए होंगे, उसमें किस तरह की लैब्स चाहिए होंगी, उसमें किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो भी एक प्लानिंग है. जो ह्यूमन के रिलेटेड है उसे मैन पावर प्लानिंग कहेंगे, जो अदर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग. अगेन दिस इज मैन पावर प्लानिंग इज डन नो, मैन पावर. फिर कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. क्या रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही चीज है? रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप मोस्ट ऑफ यू विल टेल मी रॉन्गली, ये मैं बता देता हूँ. रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? वो मेथड्स की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट और समथिंग. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? ये 90% of the people will tell wrongly. What do we really mean by recruitment? Anji Jitesh ji. Selection is a part of the recruitment process only. Recruitment includes so many things, starting from the advertising, like what kind of people we required, getting the job description, getting the job specification first, and then finding out that for this particular job description and this job specification, where will we get these resources? Tapping the right kind of data pool, and then advertising, and then bringing them to the process of evaluation process, and then finally, going to the selection. It's a long process. So selection is what? Selection is one of the when you finally select it, student. So it's a part of the recruitment process. This is part of the recruitment process. और यही मैं कह रहा हूँ ना, most of the people will tell me wrongly. तभी तो मैं कह रहा हूँ रिक्रूटमेंट का रोल जो रहता है ना, रिक्रूटमेंट का रोल सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू बी पार्ट, हु कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. दैट इज द रोल ऑफ द रिक्रूटमेंट. up to that only it is recruitment. Up to that it is only recruitment. Creating JD, job description and specification is a part of. हाँ, सारा उसके पास है. Job description, everything is recruitment. किस तरह जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल के ये इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह के लोग हो सकते हैं मेरे लिए, इस तरह के लोग हो सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस.
ठीक है, अप टू दैट इट इज रिक्रूटमेंट ओनली। और जो पूल बना उसमें से जो ढूंढा दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का देखिए, आप जो कह रहे थे ना आपकी, अब सिलेक्शन के लिए वो चीजें हैं जो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा। सिलेक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म देन रिक्रूटमेंट। आप बताता हूँ, एक लिमिट तक रिक्रूटमेंट खत्म हो जाती है। देखिए 90% ऑफ टाइम्स मैनेजमेंट में ना लोग हमारे गलत, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में यही फर्क है। रिक्रूटमेंट अप टिल दैट पॉइंट, जब तक आपने ए पूल ऑफ पीपल हु कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और ए पूल ऑफ पीपल हु कैन बी एप्लीकेंट फॉर दैट जॉब, इस तक जो रह जाता है दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। उसके बाद का जो प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद कई सारे प्रोसेस शुरू होते हैं, वो जो होता है वो सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या आता है? सिलेक्शन भी हो गई, उसके बाद भी एक और प्रोसेस आता है, प्लेसमेंट आता है, ओरिएंटेशन आता है, कई प्रोसेस आते हैं इन टोटल गैमेट ऑफ दिस, अलग अलग हर चीज। दिस इज 8 स्टेप प्रोसेस स्टाफिंग का, बेसिकली जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। 8 स्टेप प्रोसेस, रिक्रूटमेंट है, देन सिलेक्शन है, देन ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, देन उसका पैकेज क्या होगा। ये सारे जो स्टेप्स बनते हैं दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। ये टोटल पैकेज बनता है, उससे हम स्टाफिंग फंक्शन, जैसे प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, उसी तरह ये अलग अलग है। थर्ड स्टेप है, ठीक है। ये काम आप बहुत हद तक नहीं करते, मैं कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, पर फिर भी ये मैन पावर प्लानिंग में आपका रोल होता है। यू आर इन्वॉल्व इन मैन पावर प्लानिंग एज ए प्रिंसिपल। आप लिख के देते हो डीटी को, मेरे को इतने बंदे इस रोल के लिए चाहिए, भेजते हो ना, तो किस बेस पे भेजते हो? देखते हो कि मेरे पास किस तरह के लोग हैं, मेरे को किस तरह के लोग चाहिए होंगे, यही बेस है ना, दैट इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। इसलिए कहा कि मैं आप कुछ ना कुछ रोल जरूर कर रहे हैं। आप सिलेक्शन में क्राइटेरिया मिला हुआ, उसमें सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं कई बार, सिलेक्शन कमेटी, दैट इज अगेन द रोल यू आर परफॉर्मिंग। अब कोई नया टीचर आता है, उसे आप बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपके रूल्स होंगे, जो बताते ही है ना, कोई ना कोई तो बताता है ना, फॉर्मली और इनफॉर्मली, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। फिर आप प्रिंसिपल के पास, आपके पास नए डिपार्टमेंट में आए, उन्हें प्लेस करते हो राइटली, ये एंटरप्रेन्योरशिप में काम करेगा, ये मैकेनिकल में काम करेगा, यू आर प्लेसिंग देम, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू सेपरेट वर्ड्स, डू यू नो इट? क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क है। These are two separate words and there is a distinct line of demarcation between the two. क्या फर्क है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में? Anybody of you who would like to comment on it? What's the difference between the two? कोई फर्क है? Is it training or development? What is going on here? आप बैठे हैं ना सारे इस रूम में, is it training or development process? Training. It's training. Training. Training? Development is outcome of training. Maybe development when we do is a separate skill set we try to develop it. हाँ जी, anybody? It's a development, sir. It is development. Okay. So training is specific. You want to say training is specific. Development is not specific. Training leads to development. You want to say this thing? So as somebody from my core group is saying, from the who are online, that it is a development process. Is it right or wrong? नहीं नहीं, फिर आप बताइए ये ट्रेनिंग है कि डेवलपमेंट है, ये बताइए, आपसे क्वेश्चन है, इज इट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट? Sir, it's a development. Training में क्या होता है sir? What's the difference between training and development? Yes, you kindly let me know as per your perception. Yes, sir. Sir,
इन ट्रेनिंग वी आर डूइंग द रिपीटेटिव थिंग जब तक कि हम उसको उस रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं कर लेते हैं, उसी काम को बार बार करते हैं और रिपीट करते हैं तब तक जब तक कि उसमें हम परफेक्ट या अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस तक ना पहुंच जाए। डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें हम हमेशा एडप्ट करते रहते हैं, चीजों को इवॉल्व करते हैं और हमेशा एक नई चीज, और कुछ दिनों बाद वो एकदम नई चीज हो जाती है। दैट इज द डेवलपमेंट। Absolutely. एंड ट्रेनिंग वन थिंग वी आर जस्ट रिपीटेटिव, लाइक गन चलाना, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि ऑटोमेटिकली हमारे ह्यूमन ट्रेनिंग ऑर्गन्स या हैंड या हमारे जेस्चर्स वो हमको अपने आप ही अनकॉन्शियस माइंड में भी हम गन को चला ले जाएं। दैट इज ट्रेनिंग पार्ट। Okay, okay, very good, very good. Let me tell you, absolutely is telling the facts. Training Yes. is very specific, as he is saying, absolutely right. Training is basically job oriented. Whatever job you are trying to perform, if there is some gap, you are trying to fulfill that gap so that your job performance is excellent. That is part training. Training is specific. Development is basically futuristic. Based on your potential, as we are doing it. This program, I may say, is somehow training and development. It's not totally training and not totally development. Why I'm saying so? Because this is a heterogeneous group. Some people in this group are totally new to the system. Others who may have worked here 10 years, or some may be there 20 years or 30 years. It's a heterogeneous group. Now, for, let's say, if I'm giving some inputs on curriculum, I'm giving some inputs in this program on student evaluation, curriculum implementation, teaching learning process. This is okay for all those people who have joined newly. Then it is a training for them. Okay? This is one angle. Now, in addition to training them about their job, means teaching, I am also giving some inputs for making you excellent managers. Excellent managers, institutional managers, maybe as HOD, maybe as a principal. I am thinking from that angle. That is development part. Futuristic. I'm thinking of future. You may have to do the type of jobs. For that, I am preparing you. That is development. Training is specific. Development is futuristic. It may be broader. डेवलपमेंट का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, समझिए, फ्यूचरिस्टिक है, कल हो सकता है, पर आज इमीडिएटली, जैसे उन्होंने कहा गन चलाने वाली बात है, गन चला रहे हैं तो आपकी प्रोफिशिएंसी है, नहीं तो आप इधर उधर चलाएंगे. यू नीड टू नो इट. दैट इज ट्रेनिंग. प्रोफिशिएंसी जिसमें बढ़ा सकते हैं, दैट इज ट्रेनिंग. आप काम कर रहे हैं, क्लास में जाते हैं, अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, प्रोफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, दैट इज ट्रेनिंग. Knowledge of other inputs than your specific job, I'm saying primary job, उसके beyond जो आप learn कर रहे हैं, that leads to development. Is it clear? Is it clear? Yes. So ये बहुत बड़ा फर्क टर्म है. हम जनरली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क नहीं समझते. ट्रेनिंग भी वही, डेवलपमेंट भी वही. मैन पावर प्लानिंग बेसिकली क्या होती है? एनालाइजिंग द करंट इन्वेंटरी मींस व्हाट वी हैव. What we need for the future is the second step. To understand the gap between the two is the third step. And fourth step is either train the people, or if you have people, then you are developing for high responsibility. This is called manpower plan. ठीक है? रिक्रूटमेंट छोड़ देता हूँ, चलता हूँ आगे. सिलेक्शन का भी, सिलेक्शन का मैंने जैसे बताया था, क्राइटेरिया सेट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होती है, एंड इट लीड्स टिल मेडिकल करके आपका टोटल प्रोसेस जो बनता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. ये है थोड़ा प्रोसेस, माइनर डिफरेंसेस है. रिक्रूटमेंट सिर्फ आपने उस लेवल तक गए जिस तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ से. ये ना क्वेश्चन बड़ी जगह ये इवन हम डालते भी हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. तभी मैं बार बार कह रहा था, रिक्रूटमेंट एंड स्टिल द, आपने एक पूल बना देख लिया कि ये लोग हैं जो सुटेबल हो सकते हैं, दैट एंड्स हियर. उसके बाद जो प्रोसेस आता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन. ठीक है? Orientation, as I told you, when the person joins day one, you are telling him what are the roles, what are the brief history, what are the activities, what institution is doing,
what are the policies, procedures, what type of services we are doing, what are our products, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लोकेशन क्या होगी, एम्प्लॉइज कौन से हैं, क्या कलीग्स हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या हमारी ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल हुआ जाता है, क्या सेफ्टी में, क्या वेलफेयर मेजर्स, ऑल दीज आर कम अंडर द ओरिएंटेशन वी गिव टू एन इंडिविजुअल फॉर्मली और इनफॉर्मली व्हेन एनीबॉडी जॉइन्स योर इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट थिंग, आप भी ज्वाइन के किसी ने दी कि नहीं दी मेरे को नहीं पता, पर बेसिकली दिस इज द रिक्वायरमेंट. आप जब नए सिस्टम में आए, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, जो भी वो बता रहा है फॉर्मली और इनफॉर्मली, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. ठीक है, दिस इज अगेन जॉब ऑफ अ मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड की जो आप कहते हैं उसे. ठीक है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. दैट्स द रीजन आई सेड स्पेसिफिक. Development is based on your potential, what you have, what knowledge, skills you have, what capabilities you have. These capabilities, जैसे कई बार क्या होता है, आप अच्छे टीचर तो हैं, this is one capability. In addition to have, you have good network of people. इसलिए आपको इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट एक्सेल का इंचार्ज बना दिया जाता है, उसके लिए ट्रेन कर दिया जाता है, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, यू नो हाउ टू मेक ए नेटवर्क. टू ट्रेन यू फॉर दैट पर्पस लीड्स टू डेवलपमेंट. आप टीचर हैं, टीचिंग के लिए आए थे, और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट है, टीपीओ, इस तरह की जो जॉब असाइनमेंट्स हैं, इसके लिए फ्यूचर के लिए आपको जो तैयार करता है बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड. इसके ऊपर नहीं जाता. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कम्स द परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होती है आपकी? दो तरह की होती है, इंडिविजुअल और असेसमेंट इन द क्लास. आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, इसी तरह आपकी भी परफॉर्मेंस जज हो रही है. इसके भी कई वेज एंड मीन्स हैं करने के. हमारे जो जैसे होती है, एक तो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हो रही है आपकी, दूसरी असेसमेंट क्या होती है, ईयरली बेसिस पे भी होती है ना. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन एट ए ईयरली बेसिस. जैसे कई बार एसीआर कहते हैं, हमारे अब एपीएआर कहते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. दोनों में फर्क है. आपकी क्या होती है, एसीआर होती है या एपीएआर है? एसीआर इज ए कॉन्फिडेंशियल, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एपीएआर एंड एसीआर? हमारे भी एसीआर होती थी, पर आई थिंक फॉर द लास्ट अराउंड 10 years or so it is APAR, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. दोनों में फर्क क्या है? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आपको आपके काम के बारे में दो सिचुएशंस में बताया जाता है, इफ इट इज पुअर और इट इज आउटस्टैंडिंग. दो कंडीशंस में बताया जाता है, मेनली व्हेन इट इज पुअर. आउटस्टैंडिंग में भी कई बार नहीं बताया जाता. ठीक है, बाकी आपको सेटिस्फैक्टरी लिख दिया, गुड लिख दिया, वेरी गुड, यू डोंट नो. दिस इज कॉल्ड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एंड बॉस इज राइटिंग based on his knowledge about you, his perceptions about you, and sometimes his whims and fancies about based on bias भी हो जाता है. APAR में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, दोनों में फर्क है. ACR और APAR में फर्क है. ACR में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, अप्रेज करना. अप्रेज आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने देख ली, आइडेंटिफाई कर ली परफॉर्मेंस आपकी, आपको तो बताया ही नहीं आपके बारे में कि आप कहाँ पे लकूने हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है. जब तक आपको बताएंगे नहीं, इंप्रूवमेंट कैसे होगी. परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ बोथ. गिविंग यू फीडबैक अबाउट योर परफॉर्मेंस इज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो हमारे सिस्टम में 90% ऑफ टाइम्स नहीं है. फीडबैक तब मिलती है जब पुअर है, पुअर पे फीडबैक मिल रही है, और अच्छा काम कर रहे हैं उस पर फीडबैक नहीं मिल रही है. आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, ये नहीं फीडबैक नहीं मिल रही. आपकी क्या कमियां हैं, होलिस्टिक मैनर, वो कोई फीडबैक नहीं मिल रही. जब फीडबैक ही नहीं मिल रही, इंप्रूवमेंट कहाँ हो. अब एपीएआर में हमारी क्या है, एपीएआर में क्या है कि हमारी जो हम एज एन एचओडी, इफ आई एम राइटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ समबडी, आफ्टर इट इज फर्स्ट आपके एक रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी लिख के ये जो अप्रेजल होगी ना, ये इंडिविजुअल के पास जाएगी एज ए टोटल पैकेज, पूरी जाएगी.
उसके अपने रिव्यूज, उसने अपने बारे में लिखा, रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्डिंग, तीनों का जो व्यू पॉइंट्स हैं वो उसके पास जाएगी, गिविंग यू द टोटल फीडबैक व्हाट दे थिंक अबाउट यू, व्हाट स्ट्रेंथ्स दे फील, व्हाट वीकनेसेस दे फील अबाउट यू, एंड बेस्ड ऑन वेस्ट फीडबैक आपको मिल गई, अपने बारे में मिल गया, यू कैन समटाइम्स कमेंट ऑन इट कि नहीं ये मेरी तो ठीक है, आपने गलत लिखी है। यू कैन ऑलवेज हैव वन टू वन डिस्कशन, दिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट। हमारे भी एसीआर थी, पर एसीआर का नुकसान क्या होता था, इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी। कॉर्पोरेट में तो और एक स्टेप आ गया है, कॉर्पोरेट में एक स्टेप और आ गया इससे, हाँ, दैट इज 360 डिग्री वो तो परफॉर्मेंस कि आपको ऊपर वो तो नीचे कई थोड़े से मेथड्स पूछ हैं, के, वो मेथड्स हैं, से पूछ के, वो कई तरह के मेथड्स हैं करने के, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, number of methods are being applied, 360 as he is saying based on different set of people, परफॉर्मेंस आपकी सिर्फ आप तो लिख ही रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, आपका सुपीरियर भी लिख रहा है, आपके पीयर भी लिख रहे हैं, आपके कस्टमर भी लिख रहे हैं, सारे लिख के जो हर लेवल से जो आते हैं 360 डिग्री फीडबैक में फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर whosoever is involved with you, that is called 360 degree feedback, that is one of the ways of performance appraisal। पर जनरल में वो बात की जो हमारे सिस्टम में प्रवेल कर रही है, मेनली एसीआर काफी जगह, और काफी जगह पिछले 10 सालों में हमारे एपीएआर। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज थ्री फोल्ड, वन, टू मेक यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सेकंड, to identify your potential for your training and development, and third, based on this performance appraisal, sometimes compensation packages or punitive actions if need to be taken. These are threefold benefits कह लीजिए या objectives of performance। इसलिए ज्यादा अच्छा सिस्टम हमारा भी है नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट, और ये पॉजिटिव तो ज्यादा है, इंसेंटिवाइजेशन नहीं है इसमें। हाँ नहीं है ना, कई जगह नहीं है, बट पॉजिटिव है, हाँ punitive तो इसलिए आपके गवर्नमेंट में, तो हम लोग ऐसे नहीं नहीं देखो इंसेंटिवाइजेशन प्राइवेट में है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो लोग इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए एवरेज या वहां पे खड़ा कर देते हैं कि ताकि बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि गधे घोड़े एक बराबर कर देते हैं, वही बात है, दैट्स द फैक्ट ऑफ द स्टोरी, दैट्स द फैक्ट ऑफ द स्टोरी। अब हमारे क्या हुआ, मैं अब ये भी बता देता हूँ एपीआर से नुकसान क्या हुआ, फायदा तो जो अब नुकसान भी है, एपीआर कर तो दिया, अब वो बहस करता है यार मैं मतलब सारे अगर आउटस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मैं मतलब क्यों पाता हूँ, दुश्मनियां पालता फिर कॉन्फिडेंशियल में तो पता ही नहीं क्या लिखा, आपको राइट भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है। इस केस में वो कहता है यार मेरी जान आके खाएगा, बाकी सबके हैं सारे एचओडी कहते गुड्डी गुड्डी हो रहे तो मैं बुरा बन के क्या लेना, इसलिए सारे आउटस्टैंडिंग देते हैं। दैट इज नॉट लीडिंग टू एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, दिस इज द लकूना ऑफ द सिस्टम। ऑब्जेक्टिव तो हमारी यार ये नेगेटिव नहीं है, आप क्लास में बच्चों को परफॉर्मेंस के बारे में बताते हो, क्या नेगेटिव सोच के लेते हो, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो ना, ये उसी तरह हमारी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, यू शुड टेक इट पॉजिटिवली। आपकी ऐसे खराब कर दी जाएगी, दिस इज थ्रेट रादर देन इसको करेक्टिव एक्शन को अच्छा बनाने के लिए करना था। हाँ, अब प्रमोशन एंड ट्रांसफर एक और कंपोनेंट आता है इसमें। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन में भी एक जीरो ड्राई प्रमोशन होती है, बता दूंगा वो भी। प्रमोशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑन सम हायर पोजीशन विद बेटर पे पैकेज, दिस इज प्रमोशन। जो से एक ड्राई प्रमोशन होती है, उसे क्या कहते हैं, ड्राई प्रमोशन इज विदाउट एनी पे पैकेज, इंप्रूवमेंट इन द पे पैकेज, दैट इज ड्राई प्रमोशन, दैट इज आल्सो वर्ड। उसी तरह ट्रांसफर, ट्रांसफर आपकी होती है समटाइम्स। ट्रांसफर और प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर पैकेज, ट्रांसफर में ऑन द सेम पैकेज जा सकते हैं, ऑन द सेम लेवल जा सकते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम, बट समटाइम्स ट्रांसफर इज आल्सो अगेन पर्मिटिव। आपको ट्रांसफर गलत स्टेशन पे दे देंगे जो बिल्कुल ही है, और ट्रांसफर में आपके साथ डिमोशन भी हो जाती है, ये भी है। सो promotion and transfer again are part and parcel of this human, ठीक है। अब डायरेक्ट लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आई विल से व्हाट टाइम टू डील, टाइम बहुत हो गया यार, आई डिडंट टेक ये जनरल में, आई एम टॉकिंग इन जनरल, बेसिकली आपसे जनरल बातें कर रहा था। डायरेक्टिंग इज हाउ टू लीड पीपल टू वर्क, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्ट्रक्ट, गाइड, ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज to achieve the predetermined goals. Instruct, आपको इंस्ट्रक्ट करते हो ना एचओडी, आप क्लास में इंस्ट्रक्ट करते हो बच्चों को, इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी, ये है डायरेक्टिंग। एज ए टीचर फॉर द क्लास यू आर डूइंग, एज एन एचओडी यू आर डूइंग फॉर दिस पार्ट, प्रिंसिपल इज डूइंग फॉर द होल इंस्टीट्यूट।
तो इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी। इंस्ट्रक्ट कौन कर सकेगा? हु इज हैविंग बेटर नॉलेज, ठीक है, हु इज हैविंग बेटर कॉम्पिटेंसी, ही कैन इंस्ट्रक्ट, he can guide and he can oversee. This is educational activity. This is a positive activity again, directing. ठीक है, इंस्ट्रक्ट तो वही कर सकता है जो कॉम्पिटेंसी रखता है, जो नहीं रखता वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, और वो भी होता है, वो भी होता है। गाइड वो भी करेगा जो जानता है, नहीं तो नहीं गाइड कर पाएगा, अगर कर रहा है तो गलत है। ठीक है, ये एक है। इसमें क्या होता है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन को इसके थ्रू डायरेक्ट करते हैं हम। ये एक्टिविटीज हैं जो आप सारा दिन कर रहे हैं। कभी आप सुपरवाइज कर रहे हैं बच्चों को, स्टाफ को, कभी आप लीड कर रहे हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और इवन स्टाफ को या डिपार्टमेंट में। एंड दिस इज ऑल डन थ्रू कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल डन थ्रू कम्युनिकेशन। व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन में बी थ्रू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल मीन्स। ठीक है, बोल के भी होती है, रिटर्न वे में भी हो सकती है, जेस्चर्स से भी हो सकती है। कम्युनिकेशन तो यही है ना। ये अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ बहुत ज्यादा। सुपरविजन का मतलब होता है एजुकेट लेस क्वालिफाइड और लेस एक्सपीरियंस बाय बेटर क्वालिफाइड एंड बेटर एक्सपीरियंस। दिस इज सुपरविजन। यही कह रहा था ना मैं, इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी। दिस इज सुपरविजन व्हिच यू आर ऑल डूइंग थ्रू आउट द डे। आप किसी ना किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी के परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ समबडी, मे बी क्लासरूम स्टूडेंट्स, मे बी योर सबऑर्डिनेट्स, मे बी योर पीयर्स, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू इट। इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। लास्ट पार्ट ऑफ द जो हमारा काम होता है, क्या करते हैं हम? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल थी उसका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, टू टेक द करेक्टिव एक्शंस, यही है ना ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था? यही तो, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ही है ना। आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। आप परफॉर्मेंस अप्रेजल उसकी करते हैं जिसको आप कंट्रोल करते हैं। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर सकते। कंट्रोल आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एचओडी अपने डिपार्टमेंट में देख रहा है, प्रिंसिपल होलिस्टिक एज ए इंस्टीट्यूशन देख रहा है। कंट्रोल में, कंट्रोल किस बेस पे होता है? जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं किस बेस पे देखते हैं? परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं हम किस बेस पे देखते हैं, बताइए। मैं तो कोई सेट प्रोसीजर क्राइटेरिया, कोई सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है ना, कोई सेट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। वो हमने कब किए थे? वो स्टार्टिंग में किए थे। प्लानिंग, प्लानिंग इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और जो रियल एस्टेट डक किया, दोनों को हम मीटिंग करेंगे, जो उनका वेरिएशन आएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। एब्सोल्युटली, वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएशन पॉजिटिव भी। बिल्कुल ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कोई हम पनिशमेंट दे देंगे, पॉजिटिव है उसको पहुंचना जाने उसके। Absolutely fine. Absolutely fine. This is called monitoring and control. So controlling looking back. Absolutely right. Absolutely. Thank you for this. And this is called monitoring and control. कैसे करते हैं? Measuring performance, comparing performance with the standard set at the initial level, identifying gaps, deviations against the standards. If there are some gaps, then corrective measures. That is all. This is all done. Establishing target, ये कंट्रोल किस पे बेस पे हुआ? Establishing target at the initial level, प्लानिंग स्टेज पे हुए। ये प्लानिंग, कंट्रोल प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। Establishing target जो शुरू में किए थे। Measuring actual performances now, परफॉर्मेंस हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे पहले, उसके बेस पे हमने मेजर किया। अब कंपेयर किया दोनों को, अब जब गैप आया उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया। That's all. This is the total role of any manager in any institution. मैं बार बार ये रोल क्यों कह रहा हूँ? आपने क्लासरूम में गए, टीचर एज ए टीचर, यू सेट सम स्टैंडर्ड्स कि ये बच्चों को इतने के लेवल तक आना चाहिए, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटेंसी, मे बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आप कहते हैं कि ये बच्चों को मेरे आना ही चाहिए, ये जो इनपुट दे रहा हूँ इस स्टैंडर्ड के आनी चाहिए। देन यू एवेल्युएट देम, उनका स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुंचे।
उनकी परफॉर्मेंस अगर मैं कहाँ तक पहुंची, मैंने उन्हें पढ़ाया कुछ टॉपिक, उनकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंची, मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, यू आर ट्राई टू जज देयर लेवल, देन यू कंपेयर द टू। उसके बाद आप देखते हैं यार मेरी इनपुट्स का अभी 10% ही फायदा हुआ है, इट मींस आई नीड टू डू समथिंग मोर, मींस करेक्टिव एक्शन, रिमीडियल क्लास लगाऊं या उनको इनपुट्स दोबारा दूं या किसी और तरीके से दूं, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। This is in all what we do in any institution. Summarizing, institutional comprising of management of activities, कौन सी academic and non-academic both, इसलिए कर रहे हैं for achievement of objectives of an institution. And की कैसे जाती है? Through a set of 5 people: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. This is in all what we do in any institution. And lastly, what is the expectation? Everybody which whosoever is there in the institution, maybe student, maybe teacher, should be at such a level that they are giving their best. This is the expectation. They are giving their best. वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, ये कैसे बनेगा? ये कैसे होगा? मैं पूछ रहा हूं बार बार, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, ये कैसे होगा? As a manager, you are such a person, you are able to motivate everybody to give him the best. This is the expectation. How will you do it? So let me quote a story here, small story, 2 minute का लगाऊंगा. Once there were two friends. These two friends are animals I am talking. One is an elephant, other is a mena. Mena is a bird, you know it. Elephant, almost biggest animal. They were very close friends. एलिफेंट क्या करता है? जमीन इधर उधर घूमता है, दिन में अपना खाना पीना जो भी मिलता है घूमता फिरता है जमीन लैंड पे, और मैना फ्लाइज इन द स्काई. दिस इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरीवन. Both of the individuals, after the end of the day, used to discuss what they have done during the day. Mena used to share its experiences of the world from the top. कैसे उसने पहाड़ देखे, नदियां देखी, बच्चों को खेलते देखा, villages देखा, all these things from the top. And elephants used to share the experiences of the land. कहाँ कहाँ गया वो, कहाँ के कितने movement किया, what type of things it saw during the day. They used to share with each other. But elephant had one thing, wish in his mind. एक wish था इसके दिमाग में. When it used to hear from Mena how the world looks from the top, there was a wish in its mind. Alas, I could also fly. काश मैं भी उड़ता सकता and see the world from the top. Alas, I could also fly and see the world from the top. ये बहुत बड़ा विश था. हो सकता है पूरा? नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? हो सकता है. कैसे हो जाएगा? हैं? एरोप्लेन में ले जाएंगे. एरोप्लेन में ले जाएगी. मैंने कहाँ से ले जाएगी? सर ले जाएंगे. चलो गुड. ये भी एक तरीका है मैनेजमेंट का, हो सकता है. लगाइए आप एरोप्लेन में, सबको ले जाइएगा, तो सबको घुमाइएगा. Let them be happy and then do the needful. But as I said, it had wished that alas it could also fly. One day, when the Mena and elephant at the end of the day were discussing what they have done during the day, after listening to Mena, elephant said, alas I could also fly. काश मैं भी उड़ सकता. If anybody could help me out in this matter, I will be indebted to that person throughout my life. कोई भी मेरा इसमें जब मेरी कोई हेल्प कर देगा, मैं उसके लिए सारा जीवन आभारी रहूंगा. ये एलिफेंट ने कह दिया. मैंने immediately said, बस इतना सा, such a small wish. At that time, elephant was astonished. Do you think it is a small wish for me? It's the wish of my life. Alas, I could also fly. मैंने कहा, no, this is a wish you can always fulfill. Immediately, elephant reacted. Can you help me in this wish? Mena said, yes. Elephant said, if you will help me in fulfilling this wish, I will be indebted to you throughout my life. सारी उम्र मैं तेरा indebted रहूंगा, कर्जदार रहूंगा. Okay, Mena said, I will definitely help you out. At that time, what did Mena do? Mena broke a feather from its tail
Maina broke a feather from its tail and gave to the elephant. Gave to the elephant. Okay? Elephant said, what it is? What I am to do with this dirty feather? Maina said at that time, do I need to tell you everything? इतना बड़ा दिमाग है तेरा, इसको use कर. Use your big brain. Use your big ears. At that time, initially, elephant couldn't understand. But when the Maina again and again stressed on the similar point, then elephant started thinking what it wants to convey. What it wants to convey. After great thinking, elephant could understand what Maina is trying to say. It's starting waving its ears. Initially slowly, and after some time, it was moving very fast. It was waving its ears very fast. After some time, it started flying. It's a fantasy. Okay? It started flying. अब उड़ना शुरू हो गया. Elephant started seeing the world from the top. It saw rivers, canals, mountains, small children playing, villages, fields, everything, whatever was possible. It kept on flying, 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 till the time it had exhausted all its energy. उसके बाद उसके पास उड़ने की हिम्मत ही नहीं थी. It had to land down. It landed down. Thanked Anna from the core of heart, and it was the happiest day of the life of the elephant. Happiest day of the life of the elephant. After that, elephant thanked Maina and said, I will be indebted to you throughout the life. And after that, it gave that feather back to Maina. Maina took the feather and threw it down. Elephant was really surprised what happened. तूने it said कि तूने वो feather जो तू जिसके कारण मैं उड़ सका वो फेंक दिया. Immediately Maina said, this was my dirty feather. I was to throw it out otherwise. अब इसके बाद मेरे को स्टोरी बताने की जरूरत है आपको. What I need to tell, what I am trying to tell you, manager, institutional manager is that person who can bring the highest level of potential from you, within you, which is within you. वही एक क्वालिटी है जो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी में से बाहर लानी है, पोटेंशियल. दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एज ए लीडर. ठीक है? With this note, I thank you very much for the patient listening. Any comments, any queries, you are most welcome. काफी टाइम मैंने ज्यादा लगा दिया. I'm sorry for the same, but still, because this was a theme present, काफी बड़ा सेशन हो जाता है. All the things are very basic, but still, I wanted that I should be telling you what exactly comes under institutional management. Any queries, any questions, any comments, most welcome. From any of the people at the online, through online, or the people available here. कुछ कहना चाहते हैं तो most welcome. कोई query है, question है, कोई suggestion है, कोई comment है, most welcome. Some of the people were sending message for the presentation PPT part. Thank you, sir ji. हाँ जी, sir. कमेंट करना इसमें. Yes, please carry on. Any question from any of the participants connected online? You can unmute and please put forward your questions. Question, or not only question, any comment if they want to give, anything they want to say, most welcome. If nothing to say, then I will say thank you to all of you.